right, welcome back, viewers. This is our episode number 61. And today, as it is episode number 61, we have crossed 60 episode. I have brought in a very special guest. His name is Sumit. So, Sumit has been, I will say, in the world of startups, especially for the tier 2 and tier 3 startups. He has been a really good guy. He is about to become a legend because Sumit जो कर रहे हैं वो startup tier 2 और tier 3 में कोई नहीं देखता. Generally, whenever we think of startups, we think of big buildings and all of the corporates aligned in a tech park. That is the vision that we have generally because of that's what have been served to us. But Sumit वो वाला काम नहीं करते. Sumit actually goes to the places which are unexplored, especially in the tier 2 and tier 3 cities. So when my first conversation with happened with Sumit, it was totally like I was like, this is something we need to share on our podcast because हमारे podcast का purpose ये है, we need to bring good stories for the viewers who have been watching us, and that is why first of all, Sumit, thank you so much for joining in. Before I give you a formal introduction, we are very happy and excited to have you here with us, as our audience has been requesting to get more content like this, what we are going to be doing today. So on that note, I will be introducing you as the founder and CEO of your startup, or not startup exactly, but I will say it's an accelerator, it's an incubator. He's a mentor and a lot more, which is startup. What is the full name? Would you like to chop? Yes. So that is the brand name that Sumit is running. And what Sumit told me is he's working with around 200 plus startups, out of which 50 are in their own portfolio they have invested. So, which is something that tier 2 and tier 3 startups aspire because we need guidance. As I know the struggles, I started my company in 2020 in COVID. You guys have known how we started Propsticles. So, Sumit is there. Sumit started this journey in 2017. 2020, he made things a bit more structured and more into Surat and all those places. And now he is here. And one more thing, an insider, Sumit is planning to come to Uttarakhand. So as Yes, our audience is from Uttarakhand, you can go and meet him. So तो Sumit, अनमोल सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस व्हेन आई टॉक टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू बिकॉज यू आर द गाय बिकॉज पॉडकास्ट करना वीडियो रिकॉर्ड कर लेना इज नॉट अ बिग डील I saw right. all your podcast, your these things and all. So I was very much excited to be here क्योंकि इनफॉर्मल डिस्कशन क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में जब हम काम करते हैं तो इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है सब क्योस में ही चल रहा है यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन यू हैव टू बी वेरी वेरी इनफॉर्मल क्योंकि कोई प्रोटोकॉल बनाया तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी उसमें। तो आपसे Correct. मिल के व्हेन आई टॉक टू यू आई रियलाइज़ कि हमें बात करनी चाहिए जहाँ पे हम लोग मीनिंगफुल बात कर लेंगे। यू हैव योर ओन जर्नी, ओन स्ट्रगल व्हिच यू शेयर्ड विद मी, आई हैव समथिंग टू शेयर। सो बातचीत करेंगे एंड आई होप इट विल बी मीनिंगफुल फॉर श्योर। एग्जैक्टली पर्पस ही हमारा बातचीत करना है. दैट्स हाउ वी बिगेन. या तो व्हाई नॉट सुमित, अब हमारे यूजर्स को हमारी जर्नी तो पता है. कोविड के बीच में भी स्टार्टेड आउट, आई गॉट ग्रेजुएटेड, शुरू कर दिया, स्ट्रगल्स किए. पहले साल 2 लाख का रेवेन्यू रेवेन्यू भी क्या बोले, यस वी गॉट स्कैम्ड इन यूएस. तो वो दो 179 आया, 2 चला गया. सो राइट। आवर जर्नी वाज लाइक दैट. इट वाज वेरी funny, up and down. ठीक है, it was full of struggles. But why not you begin by telling a bit about your journey, क्योंकि उस पे अभी हमने बात नहीं की है. तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अनमोल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत क्विकली बताऊंगा क्योंकि सबसे पहले Yes, तो मैं जो स्ट्रगल्स होते हैं ना सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं राइट। आपकी correct. जर्नी अलग है, आपकी सिचुएशंस अलग है, मेरी जर्नी अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, मेरे एकेडमिक्स अलग हैं, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है। बट फिर भी कुछ बेसिक चीजें होती है जो ध्यान में रखा जा सकता है। सो आई ऑलवेज टेल द स्टार्टअप फाउंडर्स नाउ, जब मैं कॉलेज में था आई हैड दिस इन माई माइंड कि मुझे अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है राइट। बट द रीजन वाज एब्सोल्युटली स्टूपिड। रीजन वाज कि मुझे इसलिए खुद का कुछ स्टार्ट करना है क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता और इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैं हो नहीं सकती। यहाँ पे आई वुड लाइक टू कट यू आउट. ये ऐसा रीजन नहीं है. मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं हु डू नॉट वांट टू वर्क फॉर एनीवन एल्स, बट दे आर हैप्पी. दे नो द स्ट्रगल्स एज यू एंड आई नो हाउ इट गेट्स लाइक अ ब्लड बाथ. इतना ब्लड बाथ है, लेकिन स्टिल यू वांट टू वर्क एवरी डे नो मैटर हाउ इट इज. सो ये वो बात तो नहीं वी ऑल. तो ये पता नहीं था कि इतना स्ट्रगल होता है। सो आई वाज़ वर्किंग इन अ कंपनी, आई वाज़ इन पोजीशन ऑफ बिज़नेस एनालिस्ट। तो उसमें क्या होता था कि मैं क्लाइंट से मीटिंग करता था और चूँकि कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक-ठाक है और कम्युनिकेशन क्या बचपन से आपके अंदर होता है, बस सही ढंग का यूज़ करना होता है। सो आई वाज़ एबल टू क्लोज़ डील्स राइट। और वो क्लोज़ करके जब मैं ला के कंपनी को देता था, तो फिर कंपनी डिलीवर करती थी, डिलीवरी मैनेजर्स थे, टीम थी, सारी चीज़ें थी, वो स्ट्रगल मुझे पता नहीं।
तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ही चला रहा हूँ कंपनी। और व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस बिकॉज़ दिस इज़ मोर रेलेवेंट फॉर न्यू पीपल जो शुरू करते करेक्ट। तो ये सोचते हैं कि फाउंडर्स की लाइफ बहुत आसान है, दे आर एन्जॉयिंग लाइफ बस काम लाना ही है। तो वो काम लाके दिया और फिर जो बहसबाजी क्लाइंट से चल रही है, जो भी चल रही है, वो देख रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। सो आई हैड दिस इन माय माइंड कि भई मैं ही चला रहा हूँ कंपनी, तो मैं क्यों काम करूँ, मैं खुद का क्यों नहीं स्टार्ट करूँ? तो वहाँ से आइडिया आया कि आई हैव टू स्टार्ट अ आईटी कंपनी वेयर आई विल बी बिल्डिंग वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस एंड ऑल। तब एप्लीकेशंस उतने दौर में नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 राइट? सो उसमें क्या था ओके। कि वेबसाइट्स खूब बना रहे थे लोग मतलब और वो हम कर भी सही ढंग से रहे। तो मेरे कोई दोस्त हैं जो फ्रीलांसर्स थे, उनसे बातचीत करके आई स्टार्टेड दिस। जब कस क्लाइंट से काम लाने के बाद खुद ही डिलीवर करके देने की बात आई ना, तो पता चला कि स्ट्रगल क्या होता है, एक करेक्ट। ऑर्डर लेके आके पूरे साइकिल को कंप्लीट करना। आपको क्लाइंट की डिमांड्स क्या होती है और आप जब सर्विस इंडस्ट्री में होते हो तो आप मैं हमेशा मज़ाक में बोलता हूँ कि आईटी और ये सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है कि क्लाइंट को आप किडनी भी दोगे ना, तो वो बोलेगा किसी और कलर में होगा क्या ये? तो वो करेक्ट। स्ट्रगल जब हुआ मेरा, तो आई वर्क फॉर 4-5 इयर्स उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, वो तो अलग चीज़ है, बट मुझे ये समझ में आ गया कि टाइम आया अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए फॉर मी आई रियलाइज दैट दिस बिजनेस इज नॉट स्केलेबल फॉर मी एंड हियर आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट अ जेनरिक टर्म कि किसी के लिए स्केलेबल नहीं है मत करो जो टैलेंटेड लोग हैं वो कर सकते हैं लेकिन उसके पेन को समझते हुए आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट आफ्टर 4-5 years ऑफ स्ट्रगल आई रियलाइज कि मेरा काम क्लाइंट से बहस और अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस करके रोकने के अलावा कि छोड़ के मत जाओ भाई काम है ये वो, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं था एंड आई एम बाय बर्थ आई एम अ पीपल्स पर्सन राइट आई यूज्ड टू मीट पीपल कनेक्ट एंड ऑल सो इन 2016 आई केम टू जयपुर फॉर अ क्लाइंट मीटिंग एंड ऑल एंड हियर गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था स्टार्टअप का 2016 में एंड आई गॉट अ पास तो मैं यहीं पे था तो मैं चला गया वहाँ पे और जब वो देखा चीज़ों को तो मैं समझ गया कि अब ये फ्यूचर है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप बनेंगे और मुझे भी ऐसे इसमें कुछ करना चाहिए। सो मैंने प्लेटफ़ॉर्म ये क्रिएट किया और एक कहावत है, वो भी लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ कि जब सोने की खुदाई चल रही हो ना, तो सोना मत बेचो, फावड़े बेचो। सोना सब बढ़िया। लेने आएँगे और सोना लेने आएँगे तो फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ कि 5 साल की जर्नी जो थी, आईटी वाली जो फेल हुई मेरी, मैं फेल हुआ। तो उसमें मुझे एक लर्निंग मिली कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना उसके निटी-ग्रिटीज़ को, उस गेम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट। 2017 10th ऑफ जनवरी 2017 को मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। कंपनी नहीं स्टार्ट की, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हुआ। ओके। उस दिन मैंने तय किया कि मैं पहले इस गेम को पूरा समझूँगा एंड आई विल गिव 1000 डेज़ क्योंकि एक सेइंग है कि किसी भी आइडिया को समझ जाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में मार्केट में टेस्ट करने के लिए 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और किसी भी बिज़नेस को प्रॉपर्ली वायबल होने में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में 1000 डेज़ लगते ही लगते हैं। तो करेक्ट। अगर आपको 1000 डेज़ की स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर रुकने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप मत घुसो इसमें। ये मेरी लर्निंग हो चुकी थी। तो मैंने 17, 18 और 19 सिर्फ़ काम किया, उसमें मैंने पैसे नहीं कमाए, पैसे लगाए नहीं, इवेंट्स करता था, उस समय लोग जानते नहीं थे, स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते थे। बट आई यूज्ड टू डू दैट दोज़ इवेंट्स जहाँ से बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं इकोसिस्टम के, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं बुला सकूँ। अब इनवाइट करूँगा तो आएँगे, आएँगे तो होटल में रुकेंगे भी मेरे साथ, तो मेरे पास पूरा टाइम मिलेगा और फिर जब पूरे इवेंट में अगर 5 पैनल होते तो सबको मॉडरेट मैं ही करता था। ओके। क्योंकि ऑडियंस तो जो पूछेगी, पूछेगी, उस मॉडरेशन के दौरान मैं अपने सवाल तैयार करके जाता था कि ऐसा कैसे चल रहा है, कौन-सी इंडस्ट्री चल रही है, कैसे फंडिंग हो रही है, फंडिंग कैसे होती है, कैप टेबल क्या होता है, एवरीथिंग ही आस्क्ड और फिर मैं रात में बैठ के पूरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी चीज़ें देखता था। 2019 खत्म होते-होते मुझे पता चल गया कि अब मुझे आइडिया थोड़ा बहुत हो गया है और ये भी पता चल गया है कि मार्केट की नीड क्या है एंड देन आई लॉन्च दिस प्रोग्राम और जैसे ही लॉन्च करने की बारी आई, तो लॉकडाउन हो गया एंड अनमोल आई टेल यू पहले तो मैं निराश हुआ था कि भई अब मैं मिशन 2020 में पहुँचाने वाला था कमाल, अब करने का टाइम आया तो लॉकडाउन हो गया। लेकिन लॉकडाउन वाज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ फॉर मी क्योंकि चूँकि इवेंट्स करने से लिंक्डइन की वजह से लोग तो हर शहर के जानते थे मुझे, बट दे वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद मी बिकॉज़ उस समय ज़ूम वगैरह ये सब का चलन नहीं था। इनफैक्ट चलन नहीं। लॉकडाउन में पहली बार मैं ज़ूम कॉल पे आया था, उसके पहले मैंने आज तक ज़ूम कॉल नहीं किया था। एंड देन अब क्या हुआ कि मैं कोई इवेंट भी करता था या कोई स्टार्टअप से अट्रैक्शन तो मुझे फ्लाइट की टिकट से मेंटर्स को बुलाना पड़ता था, ये पड़ता था। उसमें क्या हुआ कि आई लॉन्च्ड वर्चुअल इंक्यूबेशन एंड आई टेल यू मुझे अभी भी याद है 14th ऑफ अप्रैल मार्च 22nd को हम लोग लॉकडाउन में पूरी तरह से आ गए थे एंड 14th और अप्रैल को मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला कि वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम एंड आई केप्ट अ फीस फॉर दैट नॉमिनल फीस 15 लोगों को हम लेना चाहते हैं
कल शाम तक 15 लोग आ चुके थे और रात तक 2 लोगों ने ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके 2 लोगों ने और जॉइन किया और 70 पीपल जॉइन और वहाँ पे मेरा वैलिडेशन हो गया कि अब ये चलेगा। अब मुझे इसका रिज़ल्ट देना था। आज उस कोहॉर्ट के स्टार्टअप बहुत बड़े हो गए हैं उस टाइम पे जो थे और मतलब नाउ दे आर मेंटरिंग सो मेनी यंग स्टार्टअप। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और अब देखो 4 साल हो गए हैं फॉर्मली काम करते हुए। 200-300 से ज़्यादा स्टार्टअप के साथ हमने काम किया अपने साथ। उसमें से जो मैच्योर होते गए, जो अच्छे होते गए, उनको छाँट के उनका सीड राउंड क्लोज़ कराना एंड ऑल। और इस पूरी कहानी में अनमोल मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल दूँ कि जितने भी फाउंडर्स मेरे बड़े हो रहे हैं या हो गए हैं और बड़ा होना है उनको, फंड रेज़ किया, ये किया, मैं कहीं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने करवाया है ये। सब उनकी मेहनत है। और जब वो जॉइन भी करते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये मत सोचना कि मुझे जॉइन कर लेने से आपका स्टार्टअप बड़ा हो जाएगा या फंडिंग हो जाएगी। मेहनत आपको ही करना है। मेरे होने से ये होगा कि वो सारे रिसोर्सेज़ मिलेंगे जो आपको चाहिए। यूटिलाइज़ आपको ही करना पड़ेगा। तो आज जितने भी स्टार्टअप्स हैं, आई एम फॉर्च्यूनेट दैट आई एम कनेक्टेड टू देम और वो लोग बड़े हो रहे हैं और मुझे बड़ा बना रहे हैं। सो लगता है ऐसा है कि हमने उनको बड़ा किया, बोलने में ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। वो सक्सेसफुल हैं। तो हम बड़े हो रहे हैं और हम बोलते हैं कि वो स्टार्टअप का नाम सुना है आपने, वो मेरे पोर्टफोलियो में, वो स्टार्टअप है ना, वो हमारे साथ जुड़े थे। किसी का भी कोई नाम आता है कभी अभी कोई स्टोर में गया था, उन्होंने बोला कि हमने अचार ऑर्डर किया है मतलब अपने स्टोर में, तो मैंने बोला कि कौन-सी कंपनी का? तो उन्होंने बोला लिटिल फार्म। लिटिल फार्म वाज़ इनक्यूबेटेड दे गॉट फंडेड थ्रू अस हमारे सेशन में 100 एक्स किसी ने किया। तो कितना प्राउड होता है कि यार वो जब राइट। इनिशियल डेज़ में हमारे साथ तो अब जब मैं बोल रहा हूँ कि वो हमारे साथ काम किया, उन्होंने हमारे पोर्टफोलियो में थे, हमारे उसमें थे, तो वो उन्होंने वो मौका दिया है मुझे बोलने का अपनी मेहनत से अग्रेसिवली काम करके। सो दिस इज़ द जर्नी, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड आई ऑलवेज़ से आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम टीम मेंबर। तो जब भी मैं काम करता हूँ फाउंडर्स के साथ बहुत दोस्ती यारी में इनफॉर्मल जैसे हम अभी बात कर रहे हैं उस तरह से काम करता हूँ, तभी मैं वो पेन को पकड़ पाऊँगा जिस पेन की और वो सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर पाऊँगा। अगर ऊपर-ऊपर से चलेगी बात तो मैं बीमारी कोई और है, दवा कोई और चला रहा हूँ, वो तो रिएक्शन ही होगा। वो तो दिस इज़ फिर हाउ दिस डॉक्टर इज़ द जर्नी। है। या फिर तो वो बात नहीं बनेगी ना, और स्टार्टअप में डॉक्टर तो अभी चाहिए नहीं। अभी तो यस, इमीडिएट इंजेक्शन दो, बढ़ाओ। इमीडिएट यस। नहीं, जो आपने जर्नी बताई तो उससे टोटली मैं भी रिलेट करता हूँ। मैंने जब 2020 में स्टार्ट की तो दिस इज आवर सेकंड स्टार्टअप। फर्स्ट स्टार्टअप वाज अ ड्रॉप शिपिंग कंपनी। तो मैं और मेरा एक कॉलेज में दोस्त था, यूट्यूब पे वीडियो देखी, कुछ इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखा, देखते देखते एक दिन ऐसा हुआ कि यार हम अपना क्यों नहीं स्टार्ट करते, इतना देख लिया हमने, अब तो हमें लगता है कि कर ही लेंगे। तो मैंने पैसे लिए, उसने पैसे लिए, 2 लाख रुपए जोड़े जैसे तैसे, और बड़े बड़े प्रोमिस कर दिए वीडियोस देख के कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो तो अच्छे फैमिली से लिए थे, तो बाद में ऐसा नहीं हुआ कि उठा के ले गया कोई। तो हुआ क्या, स्टार्ट किया तो उस बंदे ने कहा कि मुझे इतना पे करो, मैं ये कर दूंगा। उसे पे तो कर दिया, 2 महीने तक कोई डिलीवरी नहीं। हमने कहा ये क्या हो गया। फिर हमने खुद बिल्ड किया। अब उस टाइम अगर आज मैं बात करूँ तो अगर कोई मेरे जैसा बंदा होता तो मैं उसे कहता कि ये शॉपिफाई पे मत जा यार, तुम स्टार्ट करो वर्डप्रेस पे, पैसे नहीं है तो। अब उसने शॉपिफाई का प्लान दिला दिया, ये वो ऑल द शूशा दैट वी कुड हैव डन। वो 2 लाख रुपए हमने डुबा दिए, एक भी पैसा नहीं बनाया हमने। एड्स भी चलाने नहीं आते थे ना, पता था प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ढूंढना है। वी जस्ट वेंट इनटू इट। फिर वापस आ गए, मैं वापस चला गया इंटर्नशिप्स करने, अलग अलग 7 अलग इंटर्नशिप्स करी मैंने, वो भी अपने काम में लग गया बीटेक में। फिर हमारे पास वापस मिले ग्रेजुएशन में, यही पेंडेमिक में। तो मैं दिल्ली में था, जॉब करता था, वहाँ ले ऑफ हो गया, मैं वापस आ गया। मैंने कहा अब क्या करना है। मेंटोर थे मेरे, वो उन्होंने मेरे को कहा कि तू अपनी कंपनी शुरू कर ले, तुझे आता है। बट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने कहा कि यार ठीक है, कंपनी मैंने पहले चलाई है बट अभी मुझे लगता नहीं है इस इंडस्ट्री को मैं उतना समझता हूँ। उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने एक लाइन बोली कि जो भी कंपनी जैसे रिसेशन में स्टार्ट होती है, या तो वो फेल हो जाएंगी, अगर वो पार कर गई इसको तो कुछ भी सर्वाइव कर जाएंगी। सो आई थॉट कि यार चलो ठीक है। तो दैट्स वेयर आई रिलेट कि आपने आईटी कंपनी स्टार्ट की, 4 साल बाद आपको ये रियलाइज हुआ। तो अब वो जो मेरा पार्टनर है वो वापस मिला मेरे को, उसकी थी 21 बैक बीटेक में। कह रहा है यार पढ़ाई तो मेरे को पहले दिन से पता था मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ, वो है सेल्स। मैंने कहा मैं भी जहाँ काम करके हूँ मुझे ऑपरेशंस पता है। तो वी स्टार्टेड आउट, पहले दिन ही हमारे पास क्लाइंट था, वो कहीं से जुगाड़ कर लाया क्लाइंट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्लाइंट भी है अब तो किस बात की अब रुकना। तो वी स्टार्टेड। तो मैंने वही जो आपने पहले लेकिन बताया कि एक 4 साल ये किया। एक जो चीज़ में बोली ना आपने कि 2 लाख रुपए हमारे डुबाए हमने। मेरे भी डूबे हैं, ऑब्वियसली डूबे ही होंगे, सब सारे फाउंडर्स के डूबते हैं। तो दिस दिस वाज़ अ ट्यूशन फी, राइट? अगर वो 2000 2 लाख आप नहीं डुबाओगे ना, अब आपको तो खुशी ये मनाना चाहिए कि वो 2 करोड़ नहीं थे, 2 लाख। 2 करोड़ नहीं थे, करेक्ट। तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए डूबते ही हैं, अगर इस ध किसी भी धंधे में आना है तो, क्योंकि लर्निंग की कॉस्ट कॉस्ट। है। एंड विथ आज जो भी आप डिसीजंस ले पा रहे हो, जिस तरीके से काम कर पा रहे हो और हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, अकल आ गई है हमको। अगर वो पैसे करेक्ट। नहीं डूबे होते,
तो कभी नहीं आता। तो क्या कभी होता नहीं। है कि आपके ना वो बोलते हैं ना कि जब ये ऊपर-नीचे हो जाता है, पैसे-वैसे डूब जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आपका फाइनेंशियल कंट्रोल आना शुरू होता है। और हुँ, फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे ही आना शुरू होता है ना, आपकी कंपनी बढ़ने का वो चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन एंड आई वाज़ वन ऑफ देम। अभी लर्निंग ही चल रही है और जैसा मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम सिंस लास्ट 10 इयर्स। आई नेवर से कि मैं कुछ कर रहा हूँ वैसा कि मैं मेंटर हूँ, तो वो कभी नहीं बोलना है, कि वो डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें कर लेने के बाद वो समझ में आ जाती है बात कि पहले डूबना ही है, उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल आपका आना शुरू होता है और फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन अनमोल, हम लोग इतने स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, इतने टैलेंटेड लोग, इतने शानदार एग्जीक्यूटर्स, लेकिन वो फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, कहाँ हुँ, कितना खर्चा करना है। तो मैंने एक बातों-बातों में बोलता हूँ कि एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है अपने, अगर आप ₹100 खर्च कर रहे हो अपने स्टार्टअप, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या ₹100 का आरओआई, आरओआई यूज़र्स के लिए मैं बताऊँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है करेक्ट, कि नहीं? अगर है, नहीं है अगर, तो वो ₹100 भी महँगा है। और अगर आप ₹5,00,000 खर्च कर रहे हो, अगेन आस्क कि आरओआई है कि नहीं? अगर आपको 50 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का आरओआई दिख रहा है, तो 50 लाख सस्ता है। सॉरी 5 लाख सस्ता है आपके लिए। 5 लाख से। ये कैलकुलेशन समझते अब ये जो डायलॉगबाज़ी मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये बिना डुबाए नहीं आता, बिना वो स्ट्रगल किए नहीं आता। करेक्ट, तो मेरा यही कहना है कि और जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि मेरा रीज़न ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, इसलिए मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ। उस वक़्त अपना खुद का बिज़नेस बोलते थे, स्टार्टअप वर्ड भी नहीं था इतना चलन में। तो मैं ये जितने भी यंग फाउंडर्स हैं जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर ये रीज़न है तो बहुत मुश्किल है। करेक्ट, क्योंकि रीज़न ये होना चाहिए कि मैं इस चीज़ से इंक्लाइंड हूँ, ये चीज़ मेरी एक्सपर्टीज़ है और ये चीज़ में मैं इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इसका मार्केट साइज़ इतना बड़ा है कि अगर मैं चलाऊँगा तो मैं पैसे कमा पाऊँगा। जो मैं बना रहा हूँ लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ों के बाद स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहिए और अगर ये सोच के आते हैं कि हमें खुद का कुछ करना है तो मैं हमेशा बता दूँ कि जब भी मैं स्टार्टअप्स के बारे में बात करता हूँ अनमोल, सो आई नेवर से कि आप जॉब मत करो, स्टार्टअप करो। आई नेवर से दिस। I always say that both are complementary and both are equally important. अगर सब लोग स्टार्टअप करेंगे तो जॉब कौन करेगा? लेकिन सही बात, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ माइंडसेट। आप या तो एंटरप्रेन्योर बनो या इंट्राप्रेन्योर बनो। एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉयी माइंडसेट का नहीं होने की ज़रूरत है आपको कि ये मेरा काम नहीं है, 10 से 5 मेरा 5 बजे काम खत्म हो गया। आए हैं 10 बजे एग्ज़ैक्ट और 5 बजे की वेट कर रहे हैं कि जाना है। वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। राइट, क्योंकि कंपनियाँ स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स और उसको बड़ा करते हैं इंट्राप्रेन्योर्स, द फर्स्ट लेयर इंट्राप्रेन्योर, ऑफ द मैनेजमेंट टीम और वो राइट, सब एम्प्लॉइज़ हैं। बट दे आर इंट्राप्रेन्योर्स, दे आर लीडर्स। तो आज के डेट में यंगस्टर्स को मैं ये बोलता हूँ कि आप जॉब भी करने जाओ ना, तो एटीट्यूड एंटरप्रेन्योर वाला ही रखना पड़ेगा, आपको ओनरशिप रखनी पड़ेगी। तभी आज जब आप ही खुद हायर करते होगे अपनी टीम में, तो आप डिग्री नहीं देखते होगे। आप ये नहीं देखते होगे बंदा आप ये देखते हो इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है मेरे साथ, कि किस बात का कैसे आंसर दे रहा है, कितनी बहस कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप पर्सनैलिटी देख रहे हो और उससे आपकी गट पर्सनैलिटी, फीलिंग कह रही है कि ये बंदा मेरे साथ काम करने में इसके साथ मज़ा आएगा। और पहले ज़माने थे रिज़्यूमे तो मँगा ही नहीं रहे। हाँ, रेज़्यूमे तो रेफ़रेंस से किसी ने बोला कि ये बंदा है तो आ जाओ मिल लो। मिल के ही पता चल जा रहा है किसके साथ काम करना है और ये चल रहा है बहुत। तो मैं बोलता हूँ कि अगर एम्प्लॉयी माइंडसेट का कोई रहेगा और वो जॉब करेगा तो वो एक समय आएगा अगर लायबिलिटी बन गया तो कंपनीज़ निकाल देगी उसको। हुँ, और वो बोलेगा कि मुझे निकाल दिया गया, ये हुआ, वो। और जो लीडर्स हैं, जिनकी वजह से कंपनी चल रही है उनके कंधों पे, उनको कुछ भी आ जाए ना, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी भी आ जाए, तो कंपनी उनको गहने बेच के भी रोकेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये चला गया, तो फिर समय सही होने के बाद कहाँ से लाऊँगा इसको वापस? तो करेक्ट, इसलिए ओवरऑल मेरा कहना ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ़स्टाइल और वो हर जगह लगती है। आप जॉब करें या खुद का बिज़नेस करें, आपको तो मुझे जॉब करते वक़्त मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ हमेशा से। आई टूक द ओनरशिप मतलब कहीं भी वो बोलते हैं ना कि टाइम पास और ये सब नहीं। और उसी का फ़ायदा मिला कि मुझे वो ताकत मिली कि वो झेल गया मैं वो सब स्ट्रगल एंड एवरीथिंग। करेक्ट, और बाद में अब अकल थोड़ी बहुत आई है, मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ काम करना है हुँ, तो वो एन्जॉय। तो बस वही मिसकम्युनिकेशन खाली नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप स्टार्टअप ही करो। हम ये कह रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, इंट्राप्रेन्योर बनो करेक्ट। और क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो ये नहीं होंगे और ये नहीं रहेंगे तो ये नहीं होंगे। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इकोसिस्टम में बैलेंस ज़रूरी है एंड जो पार्ट आपने बोला विद द थिंग ऑफ एटीट्यूड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करूँ मैं I have we have spoken about this in podcast earlier as well. So we have done MOUs with these universities. So we give them industry knowledge insight और in return universities help us to get the candidates faster. Internship के लिए हो गया, job के लिए हो गया.
सो मेजर थिंग इज दैट आजकल जो पेंडेमिक बेबीज हो गए हैं, तो उनके साथ दिक्कत क्या है, मतलब नॉट एग्जैक्टली पेंडेमिक बेबीज No, बेबीज no, बट हाँ I'm जो getting it. I'm getting it. कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, Yeah. तो उनका वो जो 2-3 साल घर बैठ के माइंडसेट हो गया ना, सो दे डोंट अंडरस्टैंड। मैं जैसे बात करूं जहाँ पे मैं लास्ट कंपनी में काम करता था, सो इट वाज आल्सो स्टार्टअप, वर्ल्ड में नंबर 7 पे इन आईटी रिसर्च एंड कंसल्टिंग दे यूज्ड टू रैंक। A company of 15 people was competing with a company like Gartner, Forrester in that segment. अब उस कंपनी में काम करके मैंने क्या नहीं देखा, मैं कॉम्पिटिटर की एक बारी पोस्ट लाइक कर दी, मेरे को नौकरी से फायर होने की बात आ गई। Right. मुझे नहीं पता था उस टाइम, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई वाज डूइंग, मेरा वो एक्शन इतना सा क्या होगा। छोटी सी बात है, बट Yeah. द काइंड ऑफ प्रेशर यू गो थ्रू, जो आपने इंटरप्रेन्योर वाली बात की, सेम वहां पे मेरा माइंडसेट था। मैं यही कहता था कि आप मेरे को पीट दो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो, बस मेरे को काम बताते रहो, करना क्या, Yes. मुझे सीखना है। तो वो Absolutely. माइंडसेट बहुत जरूरी है, और वही आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा ऐसी लैकिंग। तो मतलब नहीं, बात ये होगी कि मैं तो ये देखता हूँ कि लो स्किल बंदा हो लेकिन उसकी इंटीग्रिटी हाई हो, एटीट्यूड अच्छा हो, उसको मैं हायर करके ट्रेन कर लूंगा। बट वो अगर हाई स्किल है और चीज ही मतलब समझ ही नहीं है, उसे एटीट्यूड सही नहीं है, तो मतलब वो तो तबाह कर देता है वो तो कम। जाकिर खान बोलता है कि काम 19 चलेगा, बंदा 20 ही चाहिए। जो काम कर लेगा वो बंदा 20 है, तो बाद में हमारे साथ जब जुड़ेगा और सारी चीजें होगी, तो ये बहुत सही बात है। और वो चीजें हम लोग भी जॉब कर रहे हैं, हमारा टाइम जब एक टाइम से फ्री हो जा रहे हैं, सब लोग घर जा रहे हैं, तो मैं बोलता था कि भाई और क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे सिस्टम में, वो देखता हूँ मैं, उसमें जाके कि मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, बस मुझे इसमें लगाओ कि मैं करूँ, और लोगों ने अपॉर्चुनिटीज दी। तो उससे क्या होता है कि अब अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नॉलेज से आता है, राइट? नॉलेज। अभी सब लोग जैसे बात होती है, तो लोग बड़ा हम्बली बोलते हैं कि भाई सुमित में बहुत कॉन्फिडेंस है, स्टेज पे आके ना डर नहीं लगता इनको, यार बिल्कुल वो नहीं करता। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई दैविक शक्ति नहीं है। आप दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको स्टेज फ़ियर नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगना। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है डर पे जीत पाना, राइट? हम्म। अभी क्या है, वो जीत कैसे पाओगे? तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ जाके नाटक कर लो। अगर 200-500 लोगों की भीड़ बैठी है और जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए आपको बताया गया है, वहाँ भेजा गया है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहो। आपको ये डर सताता रहेगा, कोई सवाल ना पूछ ले कोई मेरे से, कोई ये ना पूछ ले। तो मैं कभी-कभी कॉलेजेस में जाता हूँ, 200-500 बच्चे बैठे रहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो क्या होता था कि पहले लोग आते थे कि कोई स्पीकर्स वगैरह, हम जब स्टूडेंट्स थे ना, तो हम सवाल में फँसाने की कोशिश करते थे। मैं शुरू ही इससे कर रहा हूँ कि पूरे 2 घंटे मैं यहाँ पे रहूँगा, तुम लोगों की हिम्मत है तो मुझे फँसा के दिखाओ। तो पहला चैलेंज मेरा यहीं से चालू होता है कि अब फिर उनकी ना सारी इंद्रियाँ खुल जाती है कि ये कौन-सा आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने डर पे विजय पा रहा हूँ कि भाई ब तो अब ये चीज़ है कि नॉलेज जब होता है तो कॉन्फिडेंट होता है इंसान बात करने में। तो जितने भी लोग करेक्ट। आपके सामने आके बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे कॉन्फिडेंट होके और मैच्योरिटी के साथ, उनके पास नॉलेज होती है। और कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे अ, और नॉनसेंस बातें करेंगे, बेवकूफ़ी वाली बातें करेंगे। उनको लग रहा होगा वो कॉन्फिडेंट है, बट उनको पता नहीं है उनका कॉन्फिडेंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाई? बिकॉज़ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। लैक आप ऑफ कई लोगों नॉलेज। से मिलते होंगे, बहुत चक, 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 चक करके बात करेंगे, यू नो वन मोर अनमोल, अपन यूँ कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। आपको दिख रहा है कि वो बहुत कूद-फान कर रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट बात कर रहा है बहुत हल्की बातें कर रहा है। और कुछ लोग आपकी आपकी आँखों में आके बोलेंगे और 2 लाइन में बोलेंगे, आपको लगेगा कि यार ये बंदा है कमाल का। ये बंदा है कुछ। ओनली नॉलेज रिक्वायर्ड, जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपको बात करनी है। आज हम लोग बैठ के 2 घंटे बात करेंगे। हम बहुत बात कर रहे थे जब हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम इन्फॉर्मल रखेंगे, इन्फॉर्मल रखेंगे। क्यों हमने बोला इन्फॉर्मल रखेंगे? क्योंकि हम दोनों सब्जेक्ट जानते हैं, हाँ। राइट? अगर नहीं करेक्ट। जान रहे होते ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन की लिस्ट मँगाता। हाँ फिर हाँ, बोलता है कि फिर इसमें वो दाएँ-बाएँ क्वेश्चन मत पूछ आंसर। देना। उसके बाद वो कि भई ये है कि इसका मैं आंसर एक बार प्रिपेयर करो। 3 दिन से मैं प्रिपेयर कर रहा होता कि कहीं तो वो वीडियो जाने वाला है, कहीं उल्टी-सीधी बातें गई तो मार्केट में क्या होगा एंड ऑल। और आप भी कोई एक स्ट्रक्चर दिमाग में है कि किस तरह की बात करनी है, आपने भी कोई ऐसा नहीं बनाया है कि भई ऐसा, ऐसा, ऐसा कर ले। तो वो सिर्फ़ इसलिए है कि यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद सो मेनी पीपल, यू आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, सो यू नो व्हाट टू टॉक। तो आप करेक्ट। नॉनसेंस नहीं बात करोगे, और हम दोनों का सब्जेक्ट क्लियर है कि हम किस पे बात करने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कहीं दाएँ-बाएँ ना जाए, हम वही बात कर रहे हो जो हम बात कर रहे वही बात करें। हैं। तो नॉलेज सब्जेक्ट का होना, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा पॉइंट ये था कि इसलिए हम इस पे आए थे कि जो यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो नॉलेज गेन करने में मेहनत ही नहीं कर रहे, और उनकी गलती नहीं है। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ ना कि हमारे पास ना कोई ये सब इंस्टाग्राम वगैरह रिसोर्सेज इस तरह के, गूगल भी बहुत बाद में आया था, तो ऐसा था कि हमको जो करना था अपने दिमाग पे ही जोर लगाना था, या जुगाड़ करना था, या लोगों से जुगाड़ पूछना था। करना था। अब हो गया कि वो आपके क्लिक पे आ गया, तो क्यों अनमोल से कोई मिलने आएगा बात करने के लिए कि अनमोल सर हमें ना ये कन्फ्यूजन है। उनको सट, सट, सट वहीं देख ले रहे हैं। तो हम लोग ये कॉलेज में कोई आता था और क्वेश्चन पूछते थे कि क्विज टाइप मान लो, तो हम लोग ना पहले से प्रिपेयर होके जाते थे कि 10 चीज़ें याद करके जाते हैं। अब वो गूगल कर रहे होते हैं, वहाँ से कोई पूछता है कि इस कंपनी का सीईओ कौन है? खट से गूगल करके 50 बच्चे बता रहे हैं। तो अब ये वो मज़ा ही खत्म हो गया। तो ये चीज़ों ने बहुत पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट किया है। लेकिन
आई एम टेलिंग यू वन मोर, ये ना सर्कल वापस से घूम के वहीं पहुँचेगा। क्या होगा कि ये जनरेशन, पहले वाली जनरेशन ठीक थी, बहुत स्मार्ट बच्चे थे। जब मैं बात करूँ ओके। 17-18 के जो पास आउट हो रहे थे बच्चे, दे वर वेरी नाइस। 14, 15, 16, 17, 18 तक तो दे वर वेरी गुड। मतलब आज उनके साथ इतना मज़ा आता था मुझे। उसके बाद बीच में थोड़ा-सा जो आपने बोला, जो हुँ, ये हुआ वो भी उनके साथ मेरा बड़ा बैड लक है, उनका कॉलेज की लाइफ उनकी समझ लो ये खत्म लाइफ हो गई। खत्म हो गई कॉलेज तो में। वो जो हुआ ना, अब ये जनरेशन इतनी भसड़ मचाएगी, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। इतनी भसड़ मचाएगी कि नगले वाली जनरेशन को समझ में आ जाएगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम और नहीं फिर करना। वापस वो वहाँ जाएँगे, तो धीरे-धीरे चीज़ें सुधर भी जाएँगी, उसके लिए भी ना अपने आप ही होगा। तो ये चल रहा है। अभी कल कोई वो देख रहा था मैं, कोई वो न्यूज़ एंकर बता रही थी कि एक रिसर्च में कि कंपनीज़ जेन ज़ी जो है इस वाले टाइम, लास्ट वाले टाइम, उनको हायर नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ना वो एक तो वो ऑफेंडेड बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। आप हाँ, उनको कुछ भी फीडबैक दो ना, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। Yesterday I was sitting with somebody in Ahmedabad. He's running a big company in Nigeria in अ, ये जो अहमदाबाद एंड ऑल, बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो वो मेरे से बोल रहे थे कि बसंत बाहर की नहीं है मेरी लाइफ, बसंत अंदर की है। ये बच्चों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये क्यों नहीं दम लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों? तो मैं उनको बहुत पोलाइटली बोला, फ्रस्ट्रेशन में मर जाओगे। आप ये सोचो कि गलती ये हो रही है कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी तरह वो क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो ये समझ लो कि अलग-अलग ब्रीड है। अलग-अलग एक्सपर्टीज़ है। वो जितना कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ कर करते हो आप करो, वरना आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी आपको। आप सोचोगे कि मेरे जैसे सोचें, मेरे जैसे काम करें। तो अब धीरे-धीरे उनके सामने भी स्ट्रगल आता जाएगा, समझ में आए तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट अकल आ जाएगी। बट पॉइंट है कि ये चैलेंज है और ये लैक ऑफ चैलेंज। नॉलेज है या शॉर्टकट्स हैं। डिटेल में नहीं जाना है किसी के, डीप नहीं जाना है किसी की इन्फॉर्मेशन के, ऊपर-ऊपर जान लिया बात खत्म। तो वो चीज़ क्या कर रही है कि कॉन्फिडेंट भी नहीं होने दे रही है और कई बार गलतफ़हमी हो जा रही है ऊपर-ऊपर जान के कि मुझे बहुत ज़्यादा आ गया है, उसके बाद अनमोल के सामने कुछ बोला, अनमोल ने उसको बोला कि ऐसे नहीं होता, तो ऑफेंडेड हो गया कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना जानता था, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ मुझे? तो ये सब चीज़ों की परेशानी चल रही है, बट येस। ये जो आपने बात बोली ना, ये बहुत ही ट्रू है। मैंने देखा है, इवन दिस हैज हैपेंड विद अस। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऑनलाइन होगा, $60-70 का कोर्स हुँ, कोर्स किया, उसमें लिखा होगा बिकम गेट अ 50 लाख प्लस जॉब, ऐसा कुछ हाँ, करके हाँ, वो उसे पढ़ लेंगे $70 का कोर्स को, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे आ गया। And जब वो एक्चुअल मार्केट में लैंड करते हैं, बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद अस। So we were taking an interview of this guy. He was from a tier 3 city. वो tier 2 city आया देहरादून. He paid 50,000 rupees to learn a course in digital marketing. उसमें 6 महीने का कोर्स उसने सीखा. And when he came to us, तो मैंने कहा ये अभी अभी फ्रेश कोर्स किया है या 2020? तो he got a bit offended. मैं तो अभी आया हूँ फ्रेश कोर्स खत्म करके. I did an internship. तो मैंने फिर उससे बैठ के समझा. मैंने कहा चल अभी इंटरव्यू की साइड रहे, पहले तो ये बता करा क्या उसमें. तो राइट। जब उसने मुझे बताया, तो वही कि मतलब ऊपर ऊपर से बता दी एसईओ ये होता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे. मतलब इट वाज लाइक कि ऊपर के आपने बस फर्स्ट ईयर थी, 50,000 में उसको 6 महीने बिठा के रखा, कुछ नहीं बताया, एंड देन आपने उसे ये तो कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं जॉब दे दूंगा. आप ये तो देखो, बच्चा एट द एंड बच्चे की भी गलती नहीं हो, तो आपके पास गाइडेंस लेने आया. तो ये मार्केट में बहुत हो रहा है, कंसिडरिंग ये इंस्टाग्राम पे, मतलब या नॉट अगेंस्ट इंस्टाग्राम, इट इज अ वेरी गुड टूल. मैं नहीं, उसको नहीं, यस, पर्सनली. ये बात आपने ये मेंशन करके बहुत सही किया आपने। मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्टाग्राम वेरी वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे यस, इतने ब्रांड्स बन रहे हैं, इतने लोग अपने धंधे को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड। देखो दुनिया में हर चीज़ जो है ना, जो भी टेक्नोलॉजी आई है ना, उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। चाकू प्रोज से एंड सब्ज़ी भी काटी जाएगी, चाकू से गला भी काटा जाएगा। आप गला काटने वाले गला काट देते हो तो खराब चीज़ हो गई, सब्ज़ी काटने वाला अच्छी चीज़ हो गई। तो पॉइंट ये है कि इंटरनेट को अगर बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रात-रात भर यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता था, स्टार्टअप की दुनिया राइट. को समझने के लिए। तो मैं कौन-सा कीवर्ड उसमें डाल रहा हूँ यूट्यूब में, वो तो मेरे हाथ में है ना। मैं कुछ और भी डाल सकता था। करेक्ट. मूवीज़ डाल सकता था, मैं इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी, हॉलीवुड मूवी, कुछ भी डाल सकता था। लेकिन मेरी क्या सोच है उस पे डिपेंड करेगा। तो पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आपने सही किया वो मेंशन कर दिया कि हम किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। बस ये हो कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, करेक्ट. वो अगर पता चले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं कि रील देखना कोई बुरी बात। करेक्ट. जितनी देर तक देख रहे हैं वो बुरी बात है। यस, और क्या देख रहे हो क्या अब देख रहे में हो? ऑल्सो अलग अलग कंटेंट है. अब यस, मैं जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप्स, मेरे को आधे से ज्यादा कंटेंट स्टार्टअप्स का होगा. फिर दूसरा मेरा इंटरेस्ट है राइडिंग वगैरह, उसका होगा. तो वो मैं देखता हूँ, मेरे को नॉलेज भी मिल जाता है. और मेरी एक आदत है, मैंने फोन में लिमिटर सेट किया हुआ है कि मैं दिन में आधे घंटे से ज्यादा ऊपर चला ही ना. तो राइट। वो आधा घंटा हो गया, मेरे को पता है ठीक है आज का टाइम खत्म, अब अपना आगे बढ़ो, बस काम ये करो. कर तो लें, इतना हाँ, खाली कोई मैनेज कर लेना। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, आप उनसे बात करोगे तो बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हाँ. आज नहीं है, कल नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं भाई, एक होते हैं व्यस्त होते हैं, राइट? एक्चुअली व्यस्त होते हैं। वो टाइम निकाल लेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होते हैं और दूसरे करेक्ट. होते हैं जो अस्त-व्यस्त होते हैं।
उनको पता ही नहीं होता कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितनी देर में क्या करना है, कब क्या करना है, कब फन करना है, कब मस्ती करनी है, कब सिंसियर होना है। तो वो जब पता नहीं होता ना, तो वो बिज़ी रहते हैं दिन भर, आउटकम ज़ीरो होता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि कुछ लोग व्यस्त होते हैं, कुछ अस्त-व्यस्त होते हैं। तो आज आप और मैं बैठे हैं, आप भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो, मैं भी अपने लाइफ़ में बिज़ी, बट वी हैड द कम्युनिकेशन कि भाई इस दिन 4 बजे। तो अब लाइफ़ में वो 4 बजे कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो वो हम बिज़ी एग्ज़ैक्टली, हैं, हम आप भी काम कर रहे हो, इससे खत्म होते बात आपकी लाइफ़ में भी कुछ और अलाइन्ड होगा, मेरी लाइफ़ में भी कुछ करेक्ट। और अलाइन्ड होगा। लेकिन 4 बजे का टाइम, हाँ, 4 बजे मैं बताता हूँ आपको। 4 बजे सुमित कर लें, तो नहीं यार 4 बजे तो मैं कहीं फँस गया हूँ, एक काम करते हैं कल कर लेते हैं। तो वो बिज़ी नहीं हुआ इंसान। वो हुँ, अस्त-व्यस्त है, उसका आउटकम कभी नहीं आएगा। वो अगर वो ऑडिट करे ना रोज़ रात को बैठ के अब तो थोड़ा-सा यार हो नहीं पा रहा, बट मैं ना सबको बताता भी था और मैं खुद करता था। अब थोड़ा ज्ञान नहीं देता हूँ, खुद नहीं कर रहा हूँ अभी इन दिनों में, इसलिए ज्ञान नहीं देता। मैं ना दिन भर में ना मैं रात को सोने के टाइम में नहीं, बट प्रॉपर ऑडिट ज़रूर करता था, कि आज दिन में क्या-क्या चीज़ें हुई है। जैसे इनसे मीटिंग हुई, इनसे ये कन्क्लूड हुआ, ये क्लाइंट आया, ये सब चीज़ें ना मैं रात को करता था। तो कई दिन होते थे जो बहुत हैपनिंग होती थी, मज़ा आ जाता था, और कई दिन बहुत निराशा होती थी कि आज पूरा वेस्ट गया है, कुछ नहीं हुआ। तो ये करने से सिर्फ़ ये होता था कि अवेयरनेस रहती थी, कि कल के दिन को चलो अच्छी बात है, कल के दिन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं आते ही अभी भी बगल में ही व्हाइट बोर्ड मेरे रहता है, तो मैं 4-5 पॉइंट्स लिख देता हूँ। कि बाकी चीज़ें तो और होंगी जो होंगी, ये 4 चीज़ें शाम तक कंप्लीट हो जाएँगी। क्योंकि वो नहीं हो रहा था ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी अस्त-व्यस्त वाली कैटेगरी में था, कि करेक्ट। लगातार लगे हुए, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। लोग भी कह रहे हैं कि सुमित की क्या एनर्जी है, दिन भर लगा था। सुमित शाम को बैठ के सोच रहा है, तो देख रहे हैं कि भई कुछ उखाड़ा नहीं खास। चूँकि हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग दिस वे। येस, येस, तो नहीं, मैंने नहीं, बोला वी वांट रॉ। तो मैंने बोला कि ये कुछ उखाड़ा तो नहीं है यार। तो फिर कोई तारीफ़ भी करता है ना, तो शर्मिंदगी होती है मन में। चेहरे पे तो दिखा रहे होते हैं कि हम हाँ, हम अब क्या करें, बस कर। लेकिन नहीं, जो अंदर जो से बात पता है आपने कि बोली ना। मामला खोखला है भाई, कुछ किया नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, सेल्फ रियलाइज़ेशन जिसको रहे ना, उसको दिक्कत नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा कि करेक्ट, बहुत ज़्यादा हमने कुछ उखाड़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत जर्नी बाकी है। बट मेरा पॉइंट है कि सेल्फ रियलाइज़ेशन वैसे तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि मुझे कोई तारीफ़ मेरी करता है ना, तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे वो मेरी औकात और मेरी हैसियत दोनों मुझे पता है। तो जब वो तारीफ़ करता है, तो मुझे पता होता है कि ये तारीफ़ एक्चुअल में एक्नॉलेजमेंट है या चापलूसी है। उसकी लाइन मुझे पता है। क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है ना, तो अब जैसे मेरी हाइट मान लो कि 5 फुट 6 इंच है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कोई आके बोलेगा, "अरे सुमित जी क्या हाइट है, क्या विड्थ है?" तो मुझे पता है ना बकवास कर रहा है वो। एग्ज़ाम्पल के हाँ, तौर पे बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है ना एग्ज़ैक्टली, कि मेरी हाइट कितनी। सो उसी तरीके से कोई अगर मेरी बुराई करता है, तो मुझे पता होता है कि जेलसी है या फीडबैक है। क्योंकि मेरी कमियाँ भी मुझे पता है उस मात्रा में। कि वो मेरे रास्ते में सेल्फ रुकावट अवेयरनेस करने के लिए काफ़ी बोल रहा है या इम्पोर्टेंट मुझे मुझे बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें कब पता चलेगी, जब आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर सको, खुद को एक्नॉलेज कर सको। तो खुद ऐसा ही नहीं है खुद के को क्रिटिसाइज़ ही करना है, खुद को फीडबैक देना है। और दूसरा मैं एक बड़ा मज़ाक में बोलता हूँ अनमोल, कि मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी करता हूँ। मतलब आई एम फैन ऑफ माइ सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि अब इसका मतलब ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मैं ये करता हूँ कि मैं कमाल का हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक्शन लेता हूँ, तो मैं अपने को एक्नॉलेज करता हूँ। मैं कोई डील क्लोज़ कर देता हूँ, तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मैं रात को किसी से बात होती है और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के वहाँ जाके और बातचीत करके आता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ इतना भाग-दौड़ कर रहा हूँ, तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ अपने आप को। और एट द सेम टाइम जहाँ मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ लगता है कि यार ये परफ़ॉर्मेंस सही नहीं हुई, वहाँ अपने आप को मैं ही ब्लेम कर रहा होता हूँ, किसी बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि गड़बड़ काम है भाई, ऐसे में डूब जाएँगे, अपने को सही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करने के लिए अपने आप को पहले मानना पड़ेगा कि दम है हमारे में, और ये इसमें कोई बुराई नहीं है अपने आप। तो अपने आप को मानने का मतलब है कि अगर मैं अच्छा सिंगर हूँ, तो हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैंने लर्निंग बंद कर दी है। करेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम अ गुड सिंगर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अब इसके बाद कोई ग्रोथ की गुंजाइश नहीं। तो आई एम वर्किंग एंड दिस इज़ फॉर द यंग पीपल, क्योंकि आपका नाम ही है द यंग द यंग टर्क डायलॉग्स, डायलॉग्स। राइट? सो यंगस्टर्स के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बहुत हेवी बात नहीं करेंगे। तो इसमें बस वही कहता हूँ कि यंगस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी तारीफ करो। बट ध्यान रखो कि वो झूठ ना हो। अब बेसुरे हो और ये मत बोलो कि मैं सुर-ताल जानता हूँ। मतलब यू शुड नो एंड एक्नॉलेज दैट कि मुझे ये पता है, मैं कर दूँगा। आई नो दैट, उसकी टेंशन मत लो। और लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे से कोई आ रहा हो। बहुत क्विकली मैं बताऊँ कि जैसे कोई प्रेजेंटेशन कॉलेज में मैं दे रहा था और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, स्किल तो हुआ कि बहुत शानदार प्रेजेंटेशन सुमित देता है और ये सब चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी। तो जो टीचर थी, उनसे किसी बात से वो मेरे से नाराज़ हो गए। तो क्लास में हम बैठे थे और वो इनडायरेक्टली बोल रही है क्लास में किसी को कि यू यू कैन स्पीक वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट है वो हमेशा ही बेस्ट रहेगा, यू कैन बीट देम, मुझे सुनाने के लिए।
तो मैं मुस्कुराया और मैंने वो जो दोस्त था मेरा, वो दोस्त ही था, तो वो भी हँसने लगा बाद में। तो मैंने बोला कि देख भाई, प्रॉब्लम तब कोई बीट करेगा मुझे कि जब वो यहाँ से चल रहा है और मैं रुका हुआ हूँ और वो आ रहा है। अगर मैं भी उसी स्पीड में और ज़्यादा स्पीड में भाग रहा हूँ, तो कितनी स्पीड में भागे ना, मैं इतना गैप बना के ही रखूँ। मैं कब बीटेबल हूँ, जब मैंने मान लिया कि मैं बेस्ट हूँ, तो मैं मान ही नहीं रहा। मेरी प्रेज़ेंटेशन स्किल अच्छी है, मैं देता हूँ, मैं छा जाता हूँ वहाँ पे, उसका मुझे गुमान है। आई एम प्राउड ऑफ माइ सेल्फ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही अंत है मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि और लोगों को मैं देखता हूँ, तो मुझे मज़ा आ जाता है उनको देख के, मुझे लगता है कि इनकी इनकी तरह कैसे सीख जाऊँ, इससे कर लूँ। तो प्रॉब्लम तभी होगी जब आप मान लेंगे कि इतना ही लिमिट, लेकिन जो जानते हो, तो उसका प्राउड होना चाहिए। आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि निराशा नहीं आती लाइफ में। हम्म। मैं एक और चीज़ बोलूँ कि ये लास्ट बोलता हूँ, उसके बाद अगली बात अनमोल करना। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें दिमाग में है, जब बात करते हैं तो नहीं सोचते नहीं, हैं कि इस बिल्कुल। पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक, उन यंगस्टर तक पहुँचे, कि मैंने देखा कि बिज़नेस में स्ट्रेस होता है, ये होता है कोई, तो कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, और कभी-कभी स्ट्रेस होता ही है बहुत ज़्यादा। तो उसमें ना एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने एक दिन चलते-चलते, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि हम क्या करते हैं जब स्ट्रेस होता है ना, और जिस सब्जेक्ट की वज़ह से स्ट्रेस हो रहा होता है, हम ना उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, और छोटे-छोटे अकॉम्प्लिशमेंट्स जो हो रहे होते हैं ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। हम्म। तो पहला यस। कंडीशन ये है कि जब भी स्ट्रेस हो तो वो तो रहेगा ही, उसका सॉल्यूशन तो करना ही है। बट सबसे पहले अपने दिमाग को वहाँ पे लगाओ कि क्या-क्या चीज़ें अकॉम्प्लिश हो रही है। छोटी-छोटी सफलताएँ, छोटे-छोटे सक्सेसेस, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो मेरा मैसेज है यहाँ पे, कि जब आप अपने आप को खुद समझते हो, तो वो चीज़ आपको ड्राइव करती है आगे बढ़ने की। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, तो वहाँ पे काम खराब होना शुरू होता है। तो इसलिए एक्नॉलेज करना, जो नॉलेज है आपको, उसको एक्नॉलेज हम्म। करना। हमारी फ्रेंड है, वो कह रही थी कि मुझे ना एक मर्सिडीज़ खरीदनी है, बट देखती हूँ कब तक खरीद सकती हूँ। और तो मैं बोला कि यार, प्रॉब्लम क्या है पता है? कि मेरे पास अभी जो गाड़ी है ना, कल वो भी नहीं थी। और उसके पहले वो भी नहीं थी। लेकिन एटीट्यूड में मेरे कभी कमी नहीं आई। तब भी जब बाइक पे चल रहे थे तो उस बात का गुमान था कि बाइक खरीद ली। जब छोटी गाड़ी आई तो हमने उस बात का गुमान था। अब थोड़ी-सी बड़ी गाड़ी है तो इस बात का गुमान है। तो मैं आज जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी कि इस तरह से जर्नी ग्रो होके आई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मर्सिडीज़ के लिए काम करना बंद कर दिया है। सो एक स्टेटमेंट है कि पीपल जो भी काम कर रहे हैं, दे शुड बी हैप्पीली डिससैटिस्फाइड। हैप्पी एक तो होता है डिससैटिस्फाइड कि जो है हाँ, वो मतलब पूरा टाइम बस लॉजिक, यही बोलते रहेंगे, कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं, ये वो है, बट हैप्पीली दे हैव एवरीथिंग। डिससैटिस्फाइड। वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। आज हम जो आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, वेरी मच ब्लेस्ड। आप देखो, आप कैलकुलेशन निकालो, इस इंडिया में 130 140 करोड़ लोग हैं, हम कितने परसेंट लोगों में आते हैं जो हम अभी बैठे हैं हम दोनों, और राइट। वी आर ब्लेस्ड। और ऐसा नहीं है कि हम रुक गए हैं, हम वहां भी पहुंचेंगे जहां हमको पहुंचना है। वी आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट। बट जो है वो भी आया है, और एटीट्यूड बाइक पे भी वही था, आज भी वही है, और कल भी वही रहेगा। कल भी वही वी रहेगा। हैव टू बी हैप्पीली डिससैटिस्फाइड। नहीं, ये जो अभी आपने बात की ना, बहुत ही रियलिस्टिक बात की है, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ दी, इवन जैसे मैं बता ही रहा था, टायर 2 टायर 3 में अभी इतना उत्तराखंड में खासकर नहीं है कोई भी, लाइक यूपीएस ने कुछ इवेंट्स किए, ग्राफी रहेंगे, बट एक्चुअली तक वो मैसेज स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाता, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिलेट। वो अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ये बता देंगे सीधा हाई लेवल ऑफ थॉट्स की वीसी एंड ऑल। मतलब पहले आपको तो बेस थॉट बिल्ड करना है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं बच्चों के साथ डायरेक्टली बात करके करता हूँ। सो एक यही चीज आती है उसमें कि जो अभी आपने और अभी बताई ये बातें, तो ये चीजें ऐसे किसी को नहीं पता होता, क्योंकि क्या सोचते रहते हैं बच्चे, अच्छा नहीं, मेरे को तो 5 साल में 500 करोड़ कर लेना है, और बट वो ये भूल जाते हैं जो अभी वो कर रहे हैं दैट मैटर्स। ऐसा नहीं है कि वो मैटर नहीं करता। आई हैव एब्सोल्युटली। सीन दिस, और उस चक्कर में काफी लोग गलत डिसीजंस भी लेने लग जाते हैं, शॉर्टकट्स भी लेने लग जाते हैं, एंड दैट्स वेयर दे डिस्ट्रॉय। इवन आई नो वन ऑफ माय क्लोज वंस, सो ही वाज रनिंग अ वेरी गुड कंपनी, वी वर इन द सेम फील्ड, तो हम दोनों एक दूसरे को बिजनेस भी बहुत देते थे। बट अगेन उसे मेरे को अब 4 साल हो गए, आई एम स्टिल बीइंग पेशेंट एंड स्लोली स्लोली ग्रो। अब उसको क्या हुआ, मेरे 2 ढाई साल हो गए, वो इम्पेशेंट हो गया थोड़ा। ही हैड इन्वेस्टर्स मनी एज वेल, इन्वेस्टेड इन हिज कंपनी। अब इम्पेशेंट हुआ थोड़ा, इम्पेशेंट के चक्कर में इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा प्रेशर होने लग गया कि यार ये क्या कर रहा है, बिजनेस सही तो जा रहा है, दे हैड गुड क्लाइंट्स लाइक अपोलो एंड ऑल। अब वही है, इम्पेशंस हुई, गलत स्टेप्स लिए, एक स्टेप गलत, दूसरा गलत, तीसरा, वो एक चेन बन गई ऐसी कि फिर कोई वापस जाने का रास्ता नहीं बचा। फिर इन्वेस्टर ने भी बोला यार ये क्या कर रहे हो, आई इन्वेस्टेड इन दिस गाय, बट नाउ दिस गाय हैज बिकम समवन एल्स, सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन हो तुम। या तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी करना है, मुझे 500 करोड़ करना है। तो उसने कहा कि
आई एम नॉट आस्किंग यू मुझे मेरा पैसा तुम अभी दो, हमारी बात है इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, यू बिल्ड इट इन लॉन्ग टर्म, वी आर गोइंग ग्रोइंग फाइन। यस, आप साल में अगर 11 से 20% भी कर रहे हो, इट इज ओके, यू आर लर्निंग, यू आर यंग। बट नहीं, थोड़ा इम्पेशेंट हुए तो उस चक्कर में इस कंपनी स्टॉप, मतलब द कंपनी एग्जिस्ट इन द सिस्टम, बट मतलब सिर्फ 2 ही बंदे रह गए। हाँ, इट वॉज अ 15% कंपनी। तो मैंने ये चीज भी बहुत देखी है, क्योंकि इवन आई वॉज एट दैट स्टेज। तो वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, ही टोल्ड मी कि इम्पेशेंट होगा, यू विल एंड अप इन अ डिजास्टर, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो मैं थोड़ा संभल गया, नहीं तो मैं भी इस फेज में आ गया कि आज ही मर्सिडीज लेनी है मुझे। हाँ, तो आई हैव बीन देयर। तो जो ये बात बोली बहुत रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है। एंड फॉर दोज फाउंडर्स हु आर वाचिंग इट, सो ये चीज यू नीड टू रिमेम्बर, स्टार्टअप एक दिन का खेल नहीं है, डेली काम कर रहे हैं। यू कैन सी सुमित, यू कैन सी मी, तो डेली काम कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग। एंड लाइक सुमित, इसमें आप थोड़ा से और बताओ कुछ, जो आपके इतना बड़ा जो स्टार्टअप्स का एक पोर्टफोलियो है, उसमें से भी कुछ जर्नीज होंगी जो हमारे एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स और करंट जो या स्टेट या एंटरप्रेन्योर्स है, क्योंकि हमारी ऑडियंस में थोड़ा बता दो 25 से 45 के लोग हैं, सो इट इज अ वाइड रेंज। राइट। तो मेरे पास हर तरीके के ऑडियंस है, तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा बताया जाए कि मैं एक बार ना कुछ स्टार्टअप्स जो है ना, उनकी जर्नी जिससे मैं हमारे पोर्टफोलियो में ही है, और उनकी जर्नी से जो मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिस तरीके से पेशेंस उन्होंने रखा। अ, आपको बताऊँ, एक हमारे पास स्टार्टअप है सूरत के, रॉयल पीओएस करके, राइट? पीओएस है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो पीओएस आप सॉफ्टवेयर देखते हो बिलिंग के, वो उनके लगते हैं। ओके आज नेशनली तो कर ही रहे हैं, इंटरनेशनली दुबई में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह उनके बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो उनका ही सॉफ्टवेयर चल रहा है। सो व्हेन दे केम टू अस, तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को-फाउंडर हैं, उत्पल एंड मयूरी, दे आर फ्रॉम सूरत। तो वो क्या हुआ कि जब इनिशियली डिस्कशन हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो मैं फाउंडर फिट पहले देखता हूँ कि एक टेक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो फाउंडर्स की डिपेंडेंसी किसी और पे तो नहीं होगी। दे वर वेरी, वेरी गुड इन टेक, मतलब उन्होंने 10 साल तक तो टेक ही किया था आपने, और फिर ये प्रोडक्ट लेके आए। सो प्रोडक्ट को कहीं हिलना-डुलना नहीं था, बट अभी रेवेन्यू नहीं था, और रेवेन्यू अब होने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका मार्केटिंग जो था ना, मार्केटिंग और सेल्स ये वीक थी चीज़, और जनरली होता है जो कोर टेकी होते हैं ना, एक्सेप्शन को छोड़ते हैं, तो वो मार्केटिंग और वो सब, क्योंकि उनका पूरा टाइम उसमें लगा होता है इसमें, तो वो प्रॉब्लम थी। दे वर नॉट एबल टू पिच आल्सो कि एग्ज़ैक्टली बता सके वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू की, और उसके बाद उसको ग्रो करना शुरू किया। जैसे-जैसे हमारे डिस्कशंस होते जाते थे, हमारे मेंटोर्स और हम सब बात करते जाते थे। ग्राउंड पे जिस तरीके से उन्होंने एग्ज़ीक्यूशन किया, मैं जर्नी आपको बताई कि एकदम अर्ली स्टेज जहाँ वो बता नहीं पा रहे एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हैं, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और करते-करते यहाँ तक पहुँचे कि अब फंड रेज़ करना है, और जब फंड रेज़ करने की जर्नी आई, तो फंड किससे रेज़ करना है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो इंटरेस्टेड थे चीज़ों को करने में। मुझे दूर से ये दिखता था कि पैसे 50 लाख, इनिशियली 50 लाख 1 करोड़ ही रेज़ करना था। मैंने बोला कि अगर ये रेज़ भी कर लेंगे ना, तो ये मार्केटिंग और सेल्स वीक है ना, तो उसके एक्सपेरिमेंट में खत्म हो जाएगा। तब तक उनके पास उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि किसी तरह टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के पास पहुँचा, जो ओके यूएस का हार्डवेयर बनाती है। उनसे एक लीड आई कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, फाउंडर से। तो मुझे बताया इन्होंने, तो मैंने बोला कि इनसे पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इनसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि फिर हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ब्रांडिंग भी बढ़ेगी एंड ऑल। हमने सारे इन्वेस्टर को छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया। हमने, इसलिए बोलता हूँ कि आई एम आल्सो टीम ऑफ देम, तो यस हमने छोड़ दिया। और उसके बाद टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का ड्यू डिलिजेंस चालू हुआ। उन्होंने मोस्टली टेक का ड्यू डिलिजेंस किया, कहीं इसमें हिला-डुला, तो उनकी टीम, उनके लोग, उनके सीएफओ सब लोग लगे। फरवरी 2023 में ये चालू हुआ डिस्कशन, और ड्यू डिलिजेंस, और चूँकि वो लिस्टेड कंपनी है, तो हर तरीके से कोई इंडिविजुअल तो है नहीं जो पैसे दे देगा बाद में देख लेंगे ऐसा। तो करते-करते दिसंबर में जाके, नवंबर में जाके टर्म शीट साइन हुई, और दिसंबर में पैसे आए। तब तक इन्होंने पेशेंस रखा, और डील ये हुई कि पैसे जो चाहिए थे वो तो दी कंपनी ने। उसके बाद ये था कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का जहाँ-जहाँ हार्डवेयर बिकेगा ना, सॉफ्टवेयर इनका, लाइसेंस इनका ही होगा। तो ओके एकदम से वो स्केल बढ़ा, और एकदम से आज वो प्रॉफिटेबल हैं ऑपरेशनली, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं दोनों, रिगरसली, एकदम हम्बल गाइज़। गूगल के टॉप 30 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करती है इंडिया में, तो उसमें टॉप 30 स्टार्टअप में वो सेलेक्ट हुए। और वाह मयूरी जो फाउंडर हैं उनकी, मयूरी जो बात नहीं कर पा रही थी कि क्या है स्टार्टअप, जल्दी-जल्दी में गड़बड़ कर रही थी, वो मयूरी, आज गूगल ने उस अगला जो कोहॉर्ट बनाया टॉप 30 का, तो उनको एज़ मेंटर इनवाइट किया उसमें। वाह एंड अब उनको लोग मयूरी को इनवाइट करते हैं पॉडकास्ट के लिए। अब सच आपको बहुत मज़ा आएगा उन लोगों से बात करके, यू कैन आल्सो इनवाइट देम। सो मयूरी को मल्टीपल पॉडकास्ट में लोग इनवाइट करते हैं, और बात करते देखना कि आपको एकदम ऑथेंटिक जर्नी लगेगी। तो मैंने अभी शॉर्ट में बताया,
और नज़दीक से जब देखता था और उन लोगों का धैर्य, पेशेंस और जिस तरीके से कन्विक्शन कि हम इसी में करेंगे। लोग बोलते थे, "आप मल्टीपल में क्यों नहीं कर देते हो?" तो नहीं बोला कि हम अपना कोर ही पकड़ के रखेंगे क्योंकि जो चीज़ में बेस्ट है ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बिकेगा। और देखते ही देखते आज टॉप 3 के रेज़र पे का मैगज़ीन था, उसमें टॉप 3 के स्टार्टअप में अभी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था उसमें। रेज़र पे के उसमें टॉप स्टार्टअप्स उन्होंने लिखा था, तो उसमें 3 जो उन्होंने पीओएस जो है उनका जो सेलेक्ट किया था उन्होंने पूरे इंडिया से, उसमें रॉयल पीओएस का नाम था। वो मेरे लिए इतना प्राउड मोमेंट था वो जब देखा मैं। और आप देखो कि पेटीएम के साथ पार्टनरशिप, रेज़रपे के साथ पार्टनरशिप, स्विगी के साथ, ज़ोमैटो के साथ, सबके साथ पार्टनरशिप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टार्टअप्स है, अब ऐसे वो आज टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक इज़ प्लानिंग कि कैसे एक समय आए कि हम इसको एक्वायर कर लें एंड एवरीथिंग। तो जहाँ एक आइडिया लेके वो आए। अब ये जो जर्नी मैंने इतने आराम से बता दी ना, इसके पीछे कैसे उन्होंने दिन-रात जग के, भूखे-प्यासे, होपलेस होके सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। और फिर भी वो रुके रहे कि भई इसको हम करके ही मानेंगे। मतलब वो काम को लेके अपने प्रोडक्ट को लेके कभी निराश नहीं होते थे। वो देखते थे कि वो जर्नी है और चलती आएगी। एंड टुडे अब नेक्स्ट लेवल का राउंड हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किससे फंड लेना है, नहीं लेना है काइंड ऑफ ऐसा नहीं हो रहा है कि भाग रहे हैं हम। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट मैं करता हूँ ये फाउंडर ऐसे तो मल्टीपल है बट इनका इसलिए मैं करता हूँ कि इनका क्लोज़ली देखा एकदम हम्बल कोई श्रूड लोग नहीं, कोई भी बकवास नहीं, कुछ नहीं। काम करना है, पूरा प्रॉपर डिलीवरी करना है। और आप देखो 100% उनका सब्सक्रिप्शन है ना, 100% रिटेंशन है उनका। वाह! यानी कि वही 2-4 रेस्टोरेंट्स बंद करते हैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करना, जिनका रेस्टोरेंट ही बंद हो गया होता है। अदरवाइज़ किसी ने सर्विस की वजह से चेंज नहीं किया। ये अपने आप में कमाल की बात है। तो किस कन्विक्शन के साथ वो काम कर रहे होंगे। अब जो लोग काम कर रहे हैं वो रियलाइज़ कर पाएँगे, जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं चलेगा कि एक सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ में 100% लोगों को रिटेन करना अगले साल नियर टू इम्पॉसिबल है। नियर टू इम्पॉसिबल है। कस्टमर जितना डिमांडिंग है आज की डेट में और कितना अवेयर है, वो कितना विंडो शॉपिंग कर रहा है, उसके बावजूद करेक्ट, इफ यू आर एबल टू रिटेन देम, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है और उनका अगर स्टार्टअप्स को जो हम ज्ञान देते हैं, उसका जीता-जागता अगर देखें तो उन्होंने क्या किया कि एम्पैथी एक होती है, जब हम बात करते हैं ना, जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एम्पैथी होना चाहिए अपने कस्टमर के साथ। यू हैव टू पुट करेक्ट, योरसेल्फ सेल्फ इन कस्टमर शूज़ तभी आप सॉल्यूशन दे पाओगे। वो एग्ज़ैक्टली वो करते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न द कस्टमर सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि कस्टमर को लगता है कि हमारे घर के ही लोग हैं ये। मतलब एकदम से अवेलेबल है, तुरंत आके सॉर्ट आउट कर देते हैं कुछ भी होता है तो। ये फीलिंग देना, कभी उन्होंने हुँ, इतने क्लाइंट होने के बाद भी किसी को ग्रांटेड नहीं लिया, जो हम ले लेते हैं जब बड़े होने लग जाते हैं, वो कभी नहीं किया। तो जो भी एक स्टार्टअप को ज्ञान दिया जा सकता है ना नए स्टार्टअप को, वो सब उन्होंने जिया है मेरी आँखों के सामने। ऐसे मल्टीपल हैं बट एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। कि उन्होंने जिया हमारे सामने। तो ऐसे कोई स्टार्टअप चलाना रॉकेट साइंस नहीं है अनमोल, बट एट द सेम टाइम पीस ऑफ केक भी नहीं है। यस, और स्टार्टअप शौकिया नहीं करना होता है। आपको आप देखो ना कि कई बार क्या होता है देखा-देखी स्टार्टअप करने लग जाते हैं बच्चे राइट? कि वो इस डोमेन में कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। वो इस डोमेन में ये नहीं देखते कि उसने कितने परिश्रम किए, कितना नॉलेज लिया तब वो कर रहा है। तो एक मैं ना क्विकली ये हो सकता है जो यूज़र सुनेंगे उनको इंटरेस्टिंग भी लगेगा बट मैं लाइटर नोट पे एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ और देखना है तो लाइटर नोट पे बट उसका उसका जो मैसेज देना चाहता हूँ वो बहुत सीरियस है। कि एक प्लेन पे अनमोल एक तोता और एक बंदर सफ़र कर रहे थे, राइट? अब क्या हुआ कि तोता है उसने बेल बजाई टन, एयर होस्टेस भागती-भागती आई, यस सर। बोला कुछ नहीं मैं तो मज़े ले रहा था। अब ये देख के बंदर को बहुत मज़ा आया। बंदर ने बोला मैं भी करूँगा, उसने भी बेल बजाई, टन एयर होस्टेस आई, यस सर। बंदर बोलता है कि नहीं मैं भी मज़े ले रहा था। अब उसको गुस्सा आया, वो पायलट के पास गई बोला कि एक तोता और एक बंदर बैठे हैं, बार-बार बेल बजा रहे हैं, जा रही हूँ तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मैं तो मज़े ले रहा था। तो उसने बोला दोनों को उठा के बाहर फेंक। अब फ्लाइट बहुत ऊँचाई पे उड़ रहा है और उसमें से बोला उठा के बाहर फेंक दो। गर्दन पकड़ के जब वो ले गई फेंकने के लिए, तो तोता पूछता है बंदर से कि बेटा उड़ना आता है तुम्हें? बंदर बोलता है नहीं, तो बोला फिर मज़े क्यों लिए? सो दिस इज़ द मैसेज कि अगर तोते की तरह बंदर को मज़े लेने आते हैं तो उड़ने का स्किल डेवलप करो या किसी ऐसे उड़ने वाले को लेके आओ जिसके कंधे पे बैठ के उड़ सकते हो। उड़ सको। अभी क्या है कि सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस लिया नहीं उतना और तुरंत चालू कर दिया। मेरे इनिशियल जर्नी जो आईटी कंपनी की थी वो क्यों स्ट्रगल भरी रही? क्योंकि मैं बिज़नेस एनालिस्ट था, मैं मार्केटिंग कर रहा था, मेरा कंप्यूटर साइंस वैसे बैकग्राउंड है बट मैं मार्केटिंग बिज़नेस बाद में मैंने एमबीए किया था। तो वो चीज़ें मार्केटिंग में मेरा ज़्यादा कोर था, तो मेरे टेक पे हमेशा डिपेंडेंसी रहती थी दूसरों पे। क्या डेवलप हो रहा है, कितना टाइम लगेगा वो बताते तो मुझे कि 10 दिन लगेंगे तो मैं मान लेता था 10 दिन लगेंगे। अगर 10 दिन उससे लगे। उसकी एक्सपर्टीज़ ली होती मैंने पहले और फिर घुसा होता तो
मुझे पता होता कि ये झूठ बोल रहा है 10 दिन नहीं, ये 1 दिन का काम है। तो उनको पता भी था कि इनको नहीं पता। तो इसीलिए अगर मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं थी, या तो मुझे कोई पार्टनर लेके आना चाहिए था जो टेकी हो, वो मेरा को-फाउंडर होता। तो मैं मार्केटिंग देखता, जैसे आपने बोला ना कि एक ऑपरेशन मेरा अच्छा है, तुम्हारी मार्केटिंग इस पे, लेट्स डू दैट। उस तरीके से लेके आता मैं, वो मैंने नहीं किया। सो फेलियर का, आपकी किस्मत खराब नहीं होती अनमोल अगर आप फेल होते हो। फेलियर का वैलिड रीज़न होता है और सक्सेस का वैलिड रीज़न होता है। वैलिड रीजन होता है। और वो आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बट कौन से लोग हैं जो फेलियर से सीख पाते हैं, जो वैलिड रीज़न को जान रहे होते हैं। राइट। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार किस्मत ही खराब है यार, इतने पैसे लगाए। फेलियर मोरली ना लर्निंग होती है, और लोग उसे बड़ा नेगेटिव वे में ले जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि एक सक्सेस के लिए कितने सारे छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं। पार्ट ऑफ अब प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ, पॉडकास्ट ही जब मैंने शुरू किया था, 50 सब्सक्राइबर थे क्रॉपस्टिकल के यूट्यूब चैनल पे। एक एपिसोड कर लिया, चलो। अगर वो होता कि भाई बस एक दिन में फेमस हो जाए, एक कर लिया, दो कर लिया। पहले 10 तक तो व्यूज ही नहीं आते थे, मुश्किल से 10 लोग देख रहे हैं। राइट, पर ठीक है, मैंने कहा कि नहीं, व्यूअर्स देख रहे हैं, 10 भी देख रहे हैं, उनको दिखाएंगे, लेट्स सी आगे क्या होता है। परफेक्ट। जब 100 एपिसोड हो जाएंगे उसके बाद लेट अस टॉक, इसको चला के देखो होता तो क्या है। अब करते करते आज, लाइक इट हैज गॉटन इनफ्लो, बट लोग यही नहीं देखते। मैं ही एक दो पॉडकास्ट पे गया था विद दिस यंग स्टूडेंट्स, तो दे स्टार्टेड, मैंने कहा आई विल सपोर्ट यू, मैं आता हूँ साथ में, मेरे को कोलैबोरेशन होना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं गया, एक एपिसोड किया, दूसरा किया, इसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका उसमें फॉलोअर्स अच्छे नहीं है। मैंने कहा इट इज नॉट अबाउट दैट, तुमने तो पॉडकास्ट पे बोला है। मैंने कहा इट इज पेशेंस का गेम, पहला एपिसोड है, कौन जानेगा। सो वो पेशेंस ही नहीं है। अब पॉडकास्ट बंद कर दिया, चलो ये कर लो, उसने वो किया, वो देखो एक बारी में इतना अच्छा हो गया, मैं भी आज से व्लॉग्स बनाऊंगा। यस। सो लोग यही नहीं देखते कि यार एक जर्नी को, अब मैं पिछले 4.5 साल से कंपनी चला रहा हूँ, मेरे को कई लोग आके कहते हैं कि अभी तक तो 10 करोड़ की होनी चाहिए थी, 100 करोड़ की। मैंने कहा मेरी जर्नी ये है, मैं सीख भी रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, और ठीक है, मैंने कहा आई एम सेटिस्फाइड जो मैं कर रहा हूँ, बट ये कि मुझे आगे बढ़ना है। तो वो जो आपने बात बोली पहले, तभी बिल्कुल। मैं उससे बड़ा रिलेट कर अब आप पता है क्या, आप 100, आज आपने 61th एपिसोड बोला, 61st रहा हूँ। हाँ, दिस इज 61th एपिसोड। तो मैं बोल रहा हूँ कि 61 तक आप पहुँचे हो ना, और 100 तक आप पहुँचने की आपने जब शुरू किया था, जब आपने सोचा ना कि मैं 100 तक पहले पहुँचूँगा और फिर मैं देखूँगा व्यूज़ क्या है या सब्सक्रिप्शन क्या है। अब ये बात आपको पहले दिन पता थी ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। क्योंकि हाँ, पॉडकास्ट और जो भी वीडियो कंटेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, अगर मैं इसकी ही बात करूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की चीज़ होती है। और करेक्ट। एक 100 में एक को, सिर्फ़ एक आपके पॉडकास्ट को वायरल होना होता है, और आपके ना सारे फिर वायरल हो जाते हैं, और सबके साथ यही जर्नी है। लेकिन वो यस। पेशेंस रखना, वो कंसिस्टेंसी रखना। कई बार ऐसा लगता है, जो पॉडकास्ट करने वाले लोग होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि भई बहुत आसान काम है, बस बुला के बात ही तो करना है। भाई कितनी मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरे जो स्टार्टअप्स हैं, मेरी वाइफ भी स्टार्टअप फाउंडर है। तो कोई वो 2.5 लाख 3 लाख फॉलोवर वाले जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो वो दिखाते हैं कि इससे मैं बात कर रही हूँ, और ये ना रेडी तो हो गई है, पर ₹2000 माँग रही है, मैं पार्टनर के लिए ट्राई कर रही हूँ। ऑब्वियसली फाउंडर है तो वो तो चाहेगा नहीं कि ₹10 बचे। राइट। मैंने उसका देखा जब, तो मैंने देखा कि भाई इसके 2.5 लाख तो फॉलोवर्स हैं लिंक्डइन पे, वो सॉरी इंस्टाग्राम पे। इंस्टा पे। इसकी रीच इतनी शानदार है। फिर मैंने जो रीच थी, जो लाइक लोगों ने किए थे, वो देखा जेन्युइन लोग हैं, ऐसा नहीं कि अंग्रेज-वंग्रेज मतलब फर्जी हुँ, हुँ। मामला है। व्यूज़ मिलियंस में जा रहे हैं इसके। मैंने बोला कि इससे नेगोशिएट करना पाप है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि इसको पहुँचने के लिए इसने कितनी मेहनत की होगी, कितने ताने सुने होंगे फॉर दैट मैटर, करेक्ट। अपने घर वालों से कि क्या कर रही है ये, कुछ-कुछ बनाती रहती है, ये करती रहती है, कुछ कमाई तो है नहीं इसमें। ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो, अगर आप कहते हो ना अनमोल, या मैं कहता हूँ ना कि मैं कोई भी काम करता हूँ फ्री में नहीं करता, आई चार्ज फॉर दैट, जो भी जेन्युइन चार्ज है मैं चार्ज लेता हूँ तभी काम करता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं, जो उनको अपना वाला तो चाहिए, लेकिन दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करते, रिगार्ड नहीं करते। जैसे मैं करेक्ट। आपसे बात करूँ, तो अगर हमने डिस्कशन किया, तो आपकी जो आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, जितने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कैसे आप स्टार्टअप के साथ या बिज़नेसेस के साथ काम करते हो अपने मार्केटिंग के फील्ड में, तो वो सुनने के बाद मुझे आपका अप्रोच बहुत सही लगा, कि भाई ये अप्रोच होना चाहिए। और आपने गौर किया होगा, तो मैंने 2-3 चीज़ें पूछी आपसे कि भाई इसमें चार्जेज़ क्या है? किस तरीके से आप लेते हो, क्या लेते हो? उसमें भी आपने उसको इतना कस्टमर फ्रेंडली बनाया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अपने कमाने का आपने, जिससे आप हुँ। ज़्यादा कमाओगे, वो वैसा मॉडल बनाया है कि वो स्टार्टअप को भी कमाना पड़ेगा साथ-साथ, करेक्ट। राइट? इस जर्नी में आप जाओगे, तो फिर कोई आपसे इस पे नेगोशिएट कर रहा है ना, तो वो आपका क्लाइंट ही नहीं है। आप उस क्लाइंट को एग्ज़ैक्टली, ऑन बोर्ड। वही क्वालिफ़िकेशन है। तो मेरे पास लोग आते हैं अनमोल, बहुत रेफरेंस, किसी रेफरेंस से लोग आते हैं, और सारे मैच्योर और सीनियर स्टार्टअप्स आते हैं। कुछ लोग उम्र में मेरे से बड़े भी आते हैं, अपना सीईओ थे कहीं और स्टार्टअप शुरू किया है, बट दे डोंट नो हाउ टू नेविगेट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा रोल भी वही है लोगों की लाइफ में इनिशियली।
तो वो किसी रेफरेंस से आते कि इन्होंने आपका नंबर दिया था, आप जिसका नाम ले रहे होते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ प्लीज आइए, आप कल कल मिलते हैं 11 बजे वो ऑफिस में आते हैं, बातचीत होने के बाद मैं उनको बोलता हूँ कि इतना फीस है इनिशियली टू वर्क ऑन दिस। तो वो बोलते हैं अरे ये तो उनके रेफरेंस से आए, कुछ कम करो इसमें, तो आप ऐसी बातें करते हैं वो। तो मैं उसको बोलता हूँ सर देखो, सुमित श्रीवास्तव आपके लिए अवेलेबल है। आप इसमें मत जुड़ो इस प्रोग्राम में। आप मेरे साथ चाय पिया करो वीक में 2 वीक में 1 बार, दैट इज़ फाइन। बट सुमित श्रीवास्तव और स्टार्टअप चौपाल का फाउंडर 2 अलग-अलग लोग। करेक्ट। स्टार्टअप चौपाल का फाउंडर इज़ द फर्स्ट एम्प्लॉयी ऑफ स्टार्टअप चौपाल। ही इज़ नॉट ओनर। कई लोग ना मालिक अपने आप को जो नए स्टार्टअप करते हैं ना उन्हें मालिक समझते हैं। तुरंत फाउंडर एंड सीईओ लिख के कार्ड पहले बनवाते हैं। मॉडल और एमवीपी बाद में, पहले कार्ड, एमवे। फाउंडर एंड सीईओ। तो मैं बोलता हूँ राइट। सबसे पहले ये मानो कि हम ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के फर्स्ट एम्प्लॉयी हैं। अनमोल एक सेइंग है कि अगर जॉब करने वाले अपने आप को मालिक समझने लग जाएँ, यानी कंपनी की ओनरशिप लेने लग जाएँ और ओनर्स कंपनी में अपने आप को एम्प्लॉयी समझने लग जाए ना, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन ही खत्म हो जाएगी। करेक्ट। तो मालिक अपने आप को मालिक मतलब वो एम्प्लॉयी तो कुछ नहीं समझ रहा है, गालियाँ दे रहा है, फटकार दे रहा है, ये कर दे रहा है, कुछ ज़िंदगी बदल रहा है। वो एम्प्लॉयी जो करे हमारा क्या जा रहा है, जितना मेरे तो टाइम पास करना है, ये करना है। अगर वो ओनरशिप ले लें, जिन कंपनियों में ऐसा हुआ है, आप देखोगे वो कंपनियाँ खतरनाक ग्रो हुई है। अब करेक्ट। ज़ीरोधा ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 आईटी के लोगों को हायर किया है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिकॉर्न इसमें 36 या कुछ ऐसा है, मतलब एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं, हाँ, मैं हाँ। गलत देयर होता है कि आईटी टीम बहुत छोटी है, और मेनली कस्टमर एक टेक मैनेजमेंट है। प्लेटफ़ॉर्म, उसमें इतनी छोटी आईटी कंपनी। तो मैं बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी से अगर काम करने वाले लोग हों, तो भीड़ की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों हुँ, हुआ होगा? क्योंकि फाउंडर्स ने उनको वो उनका मेहनताना दिया होगा, जो वो डिज़र्व करते हैं। करेक्ट। वो इंडिपेंडेंस दिया होगा और इस तरीके से विज़न के साथ उनके साथ अपने विज़न को जोड़ा होगा, तभी वो डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आज इतनी छोटी टीम, इतने बड़े, और आज मैं देखता हूँ छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनाने में लोग 15-20 लोगों की टीम बिठाते हैं कि भाई ये कर रहा हूँ मैं। एफिशिएंट लोग हायर करने पड़ेंगे और एफिशिएंट लोग वो होंगे जो लीडर्स हों। तो मेरा कहना यही है कि मैं फर्स्ट एम्प्लॉयी हूँ, तो मैं कोई आपको डिस्काउंट तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे सिस्टम के साथ मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे मिलो-जुलो मेरे से, लेकिन प्रोसेस में जाना तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और अगर मैं आपके साथ करूँगा तो मेरे जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, उनके साथ वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो भी मेरे लिए उतने ही क्लोज़ है। और एकदम पोलाइटली और ब्लंटली मैं बोलता हूँ, और ये बात कई बार बहुत पॉज़िटिव जाती है कि भई अच्छा ऐसी बात है तो अपन करेंगे तो सही, आप ऐसी बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सब जो मैच्योर लोग होते हैं समझ जाते हैं कि इस पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एट द सेम टाइम जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो मैं अनमोल के पास आऊँगा, जब मुझे सारी बातें सुन के लगेगा कि भई ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं अनमोल से क्या बोलूँगा कि अनमोल ये सब सॉर्टेड है। नाउ यू जस्ट मेक श्योर फ्रॉम योर साइड कि आप जो सर्विस जैसे बोल रहे हो ना, यू प्लीज़ वॉक द टॉक। क्योंकि बस। वो नहीं होगा ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा हम लोगों को, हमारे बिज़नेस को। तो पॉइंट ये है कि और आपका धंधा जो है मार्केटिंग का जो काम है, हाँ। ये अपने आप में ऐसे ही लोग आपके पास सताए हुए, जलाए हुए आते हैं। मतलब एग्ज़ैक्टली, जो मोस्ट ऑफ द फिर पीपल। आप हमारे साथ तो इंडस्ट्री असल में क्लाइंट्स की भी गलती नहीं है, इंडस्ट्री में लोग जो कोई आ नहीं गए ना करते, क्लाइंट पैंडेमिक नहीं, में। क्लाइंट के बिल्कुल नहीं। मेरे साथ क्या होता है, स्टार्टअप बहुत एक, मेरे जो सो कॉल्ड क्लाइंट कह सकते हैं कि वो जब स्टार्टअप्स आते हैं तो एक लर्निंग के मोड में आते हैं और हमें वो पता है तो मज़ा आता है। तो हमें क्या होता है, सीधा दवा लगाना शुरू करना पड़ता है। आपके केस में क्या होता है कि पहले तो उसके घाव को, मरहम को ठीक करो पहले, फिर उसके बाद शुरुआत करो। तो वो थोड़ा-सा ये है, एंड यू राइटली सेड, क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं है ये। दिस इज़ द मार्केट। उसमें अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए आपको उस बात पे जाना ही पड़ेगा जो आपने बोला है। तो एक मैं फाउंडर्स को, नए जो फाउंडर्स हैं उनको बोलूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ सेल करते हो किसी भी क्लाइंट को, और अगर आपको लगता है ना कि 10 चीज़ें आप दे सकते हो उनकी लाइफ में, तो आप ना 8.5 या 9 बताओ और 2 10। अगर आपने एक भी ज़्यादा दिया, तो वो आपको खुश रहेगा आपसे। और अगर आपने 10 बता दिए टकाटक, टकाटक और 9.5 भी दोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में चरस बो देगा वो, आपका क्लाइंट। हुँ, कि आपने तो करेक्ट। ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी किसी को बात करते हैं और कुछ सर्विस सर्व करना चाहते हैं, तो आप वहाँ कोशिश करें कि 10 चीज़ें आप श्योर हो के आप दे सकते हो ना, तो 8 चीज़ें ही बताओ। हम स्टार्टअप से जब मैं भी इस चीज़ में बड़े अच्छे से बिलीव करता हूँ। मैं अंडर प्रॉमिस करता हूँ और ओवर डिलीवर बस करता हूँ। इतना कर मैं दें, कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं ये कर दूँगा, नहीं, वो इतना कर दूँगा। करते ही योर कस्टमर विल बी डूइंग मार्केटिंग फॉर यू। करेक्ट। और जब आपका कस्टमर आपका मार्केटिंग करना शुरू कर देता है ना, तभी आपका रियल सक्सेस आपके सर्विस का और आपके बिज़नेस। तो दिस इज़ व्हाट ऑफ कोर्स यही मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा था। अपन तो कन्वर्सेशन ही कर रहे हैं। तो येस, ओवर टू यू नाउ।
नहीं नहीं, जो ये बात बोली आपने लास्ट में, यही बहुत ट्रू है। मैं भी एक्चुअली जो हम इस मॉडल पे है उसके आने का रीजन ही यही था। वेबसाइट तो क्या है, वन टाइम एक्टिविटी है, बना दी ठीक है, वी गेट रेफरल्स, बट वो वन टाइम चलते जा रहे, दैट इज सेपरेट थिंग। ऐप बना दी, बट ऐप क्या आगे, मैं बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूँ कस्टमर का। तो फिर उस पे सोचा, फिर मार्केटिंग में देखा, हाथ चलाए हुए आते हैं। मेरा पार्टनर, कंसिडरिंग ही इज फ्रॉम सर्विस सेक्टर, तो उसने बताया कि होटल में भी ऐसे ही होता है। वो बोलेगा मैं तो इस होटल से ये करके आया हूँ, तो उसने फिर समझाया कि कुछ ऐसा मॉडल करते हैं। तो ही यूज्ड टू टेल मी फ्रॉम लाइक 3-4 महीने के ऑपरेशन में कि ऐसे करेंगे, ऐसे तो फिर स्केल करना मुश्किल है, यू नीड टू फाइंड समथिंग समथिंग समथिंग। फिर करते करते ये मॉडल बन गया है जो अभी मैंने आपको लास्ट या टाइम कॉल पे या पिच किया था। तो ये तब जाके ऐसे बना कि लाइक हमने कई कस्टमर्स के साथ काम किया, फिर हमने देखा कि ये 4 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। फिर हमने समझी चीजें कि वहां पे हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। एक मिस्टर बिव करके प्रैक्टिस होती है, रिट्स कार्ल्टन में मेरा बिजनेस पार्टनर था, तो रिट्स कार्ल्टन ट्रेनिंग सेंटर इज द ट्रेनिंग सेंटर जिससे एप्पल के एम्प्लॉयज भी ट्रेंड होते हैं। सो इट इज कंसिडर एज द बेस्ट सर्विस बुकलेट इन द वर्ल्ड। तो उसने उस चीज की ट्रेनिंग ली हुई है, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ पार्ट ऑफ रिट्स कार्ल्टन ग्रुप फॉर लाइक 4-5 years। तो उसने सेम चीज की, उसने कहा कि प्रैक्टिस बनाते हैं, देर इज वन थिंग नोन एज मिस्टर बिव। इट इज योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, योर बेस्ट बिगेस्ट फेलियर्स, एवरीथिंग यू ब्रिंग इट ऑन वन प्लेस। तो हमने वो बनाना शुरू किया। अब वो लिस्ट बन गई 100 से ऊपर अच्छी चीजें, और गलतियां तो 200-300 से ऊपर। तो उसने कहा अब ये लिस्ट है तेरे पास, अब तो इसको देख कि इसमें हमने क्या करना है। हाउ, जो हमारी डेली फ्रस्ट्रेशन होती है, अब सर्विसेज इट इज अबाउट डेली, एक जगह फायर फाइटिंग कर रहा है कोई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि टीम के साथ भी इनोवेशन दिखानी पड़ेगी, जो सिंपल सैलरी पैकेजेस होते हैं इससे काम नहीं होगा आपका। तो फिर रियलाइज हुआ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो वो जर्नी करते 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 तब जाके हमें, जब हम 4 साल के, तब हमें काफी सारी चीजें समझ आ गई कि अच्छा हाँ, मार्केट में ये है। डिलीवरी तो मुझे, ऐड तो मुझे चलाना आता है, बट जब आप कंपनी चलाते हो, इट इज नॉट अबाउट ना कि कस्टमर के लिए ऐड चला रहे हो। राइट, आपके अंडर टीम होगी, उसको ऐड चलानी आनी चाहिए, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो एब्सोल्यूट, कैसे मैच होगा। एब्सोल्यूट, फिर मेरा एक अच्छा क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का, दे आर ऑल्सो रिटेन्ड विद अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, दे रन अ सैलॉन देयर। सैलॉन का काम है, बट दे आर डूइंग वेल। तो उन्होंने भी सेम चीज बोली कि देखो, काम आपके साथ करना है जब आप चलाते हो। लाइक दिस इज द कॉन्वर्जेशन लास्ट ईयर वी वर हैविंग समवेयर अराउंड मार्च। तो उन्होंने कहा कि यार, पर जैसे ही आप किसी बंदे को लगाते हो, मेरा बिजनेस भी डूब जाता है, मेरा सब खराब हो जाता है। तो तब वहां से ये चीज स्टार्ट हुई। तो वही मैं मतलब इस स्टोरी से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ फाउंडर्स को कि मैंने कोई जो ये आज सुमित ने सारी बात की एक दिन में नहीं की, ये मेरे को टाइम हो गया करते ऑफ करते। मैं कोर्स। डेली रात में बैठ के सोचता हूँ कि यार ये मैंने क्या ऐसा किया आज। अब लाइक ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत दूध का दूल्हा हूँ, मेरे सारे ही, मेरा 101% रिटेंशन रेट है। क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स जाते हैं, कई जगह हम फिट नहीं हो पाते, कई जगह क्लाइंट फिट नहीं हो ट्रू, पाता। इट ट्रू, इज, लेट्स बी रियल, स्टार्टअप चला रहा हूँ या मैं, तो होती है या प्रॉब्लम। या अब क्लाइंट जाता है तो मैं ये नहीं कि क्लाइंट को गाली गलौज किया चला, मैं एक्चुअली मैं उससे बैठ के समझना चाहता हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके साथ बैठ के समझता हूँ कि यार मेरी गलती थी क्या था। मतलब जब अगर कोई झगड़ा हो गया तो आई विल वेट फॉर द क्लाइंट थोड़ा शांत है, मैं बैठ के समझू तो सही मेरी क्या गलती थी। मेरी गलती नहीं थी, बजट नहीं था, क्या था, मुझे वो समझना है वो चीज। तो ये चीज भी मैंने एक इम्प्लीमेंट करनी शुरू की, और आधी गलतियां तो मुझे वहीं से पता चल गई थी, कहीं मेरे ऑपरेशन में गलती थी, कहीं मेरी सेल्स टीम को मैंने हायर किया तो उसने गड़बड़ कर दी। तो मैंने ऐसे भी करके कई जगह रेजोल्यूशन देखा है। मतलब कस्टमर अगर गया तो ये नहीं है कि, और अगर मैंने एक कॉल की, मैंने एक दो केसेस में ये भी देखा वो कस्टमर वापस भी आया, और उसने मेरे को आके ये बोला, सी आपने जो लास्ट टाइम मेरे साथ बात की, आई नो कि उसमें आपकी गलती नहीं है, और रनिंग योर बिजनेस, बट कंसिडरिंग कि आपने ये किया मेरे साथ, तो आई वांट टू कम बैक एंड डू बिजनेस ये विद यू। होता है, तो ये क्या मेरे साथ। ये होता है। मैं वो ये इसमें मैं फाउंडर्स को बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बिज़नेस मॉडल आप बनाते हो? तो ऑब्वियसली फाउंडर को लगता है कि वो बनाता है। मैं बोला नहीं, आप कुछ एक आइडिया लेके आते हो और आप सोचते हो मैं ऐसे-ऐसे करूँगा। एक्चुअल में बिज़नेस मॉडल आपका कस्टमर, आपका मार्केट बनवाता है आपसे। व्हेन यू हिट करेक्ट। द मार्केट। और एक चीज़ मैं बहुत चीख-चीख के बोलता हूँ कि जो भी आइडिया के साथ आप शुरू होगे ना, अल्टीमेटली आपका स्टार्टअप वो या बिज़नेस वो नहीं होगा जिससे आप शुरू हुए थे। क्योंकि वो पिवट करना ही पड़ता है, मार्केट आपको स्टाइल बदलना पड़ता है, एटीट्यूड बदलना पड़ता है और जो लोग वो नहीं कर पाए, वही बंद होते हैं। अगर समय के साथ अगर आप पिवट नहीं कर रहे हो, मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझ रहे हो, तो आप फेल होगे। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं फाउंडर्स को बोलता हूँ कि आइडिएशन स्टेज पे आपका सबसे बड़ा मेंटर आपका कस्टमर है। उसके साथ करेक्ट। जितना समय बिता सकते हो बिताओ, मत ढूँढो हम जैसे लोगों को ज्ञान लेने के लिए। और कोई आइडिएशन इसमें मेरे से बात करते हैं, मैंने बोला कि पहले मार्केट वैलिडेट करो। तुम उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आके मुझे बताओगे ना, तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होगी बड़े करने की, बढ़ाने की, मार्केट में जाने की, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल समथिंग दैट वी कैन डिस्कस। बट कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप मन में सोच के आ रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप आइडिया सोचते हो कुछ करने के लिए,
तो जो भी आपका टारगेट कस्टमर है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और मल्टीपल्स के साथ 100, 200, 500 लोगों के साथ आप बैठो। जितना समय फाउंडेशन पे आप लगाओगे, उतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। अगर बुर्ज खलीफा बनाना है, तो उसकी आप पता करेंगे तो उसके फाउंडेशन पे काम करने में सबसे ज़्यादा समय लगा होगा और 2 माले की बिल्डिंग ही बनानी है आपको, तो कर लो फटाफट 10 दिन में बना के फाउंडेशन रेडी। तो डिपेंड करेक्ट। करता है कितना स्केलेबल चीज़ हम बना रहे हैं और उसके लिए वो उसको क्या बोलते हैं सींचना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। सो दिस ये मेन गेम तो पेशेंस का ही है। अब मैं जब पहले दिन इस बिजनेस में घुसा तो कई लोगों ने मुझे कहा कि सी सर्विसेज इज अ लाइफस्टाइल बिजनेस, प्रोडक्ट भी कर लो, ये भी कर लो। मैंने कहा देखो, मेरे को अभी एक चीज पता है, मेरे पास एक स्किल है, वो है मेरे को मार्केटिंग समझ आती है, मेरे को सेल समझ आती है। मैंने कहा मैं उसके अराउंड करना चाहता हूँ कुछ भी, एंड द बेस्ट वे आई थिंक आई कैन डू इज, वो मेरा ये तरीका है। मैंने कहा हाँ, इसके बाद आई कैन, जो पिवट वाली बात है, तो एक्चुअली में वी स्टार्टेड दिस एज अ परफॉर्म, फेसबुक एड, सिर्फ फेसबुक एड से स्टार्ट हुई थी, सिर्फ फेसबुक ऐड करते थे हम। फिर करते करते कस्टमर ने कहा मुझे ऐड भी दे दो, मुझे क्रिएटिव भी दो, मुझे तो अब आपसे ही काम करना है। अब मैंने कहा ये तो मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आप ही के साथ ये करूंगा तो मेरे बाकी कस्टमर के साथ काम मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हमने पूरा फुल सर्विस बने। अब फुल सर्विस बन गया तो फुल सर्विस के बाद उसमें क्या किया जाए, तो ये वाली चीज पिवट की तो इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा कि मैं प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा हूँ, बट जो प्रोडक्ट्स भी मैं बना रहा हूँ वो एक्चुअली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस में इंप्रूव कर सकूँ। अब ऐसा नहीं है मैं मार्केटिंग का और सेल्स का होके मैं कुछ जाके बना दूं टेक वाला प्रोडक्ट, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा। मैं तो चैट जीपीटी की एपीआई यूज कर रहा हूँ कि मेरे कस्टमर्स को बेटर कैसे सर्व राइट, करूँ। राइट, राइट। सो उस मॉडल में वर्क करना लोग, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे जा रहे होंगे एंड देन दे थिंक कि अच्छा मेरे को किसी और ने कहा ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो दे डायरेक्टली जस्ट गो देयर, मतलब उनकी लाइन से ही वो बाहर हो जाते हैं। आई थिंक मैंने एक चीज देखी है, जो लोग अपनी इंडस्ट्री में 10-20 साल 30 साल कर लें तो देर इज नो वे, नोबडी कैन स्टॉप देम फ्रॉम सक्सीडिंग। क्योंकि मेरे आई विल से देम एज मेंटर्स बिकॉज दे आर वेरी एजेड, 60-70 ईयर्स के लोग हैं वो, एंड ही इज ऑल्सो अ पार्टनर फ्रॉम कनाडा। सो सीइंग हिज जर्नी, तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि आई एम, मेरे को अभी 4 साल हुए बिजनेस करते हुए। इससे पहले मैं जॉब करता था, 2016 से मैंने एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया था, मैं 11वीं क्लास में था तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अभी तो बहुत यंग हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग। मतलब स्टार्टअप में ऑफकोर्स आप भी डाउन फेस करते हो, मैं भी फेस करता हूँ। समटाइम्स यू फील कि यार मेरे, मैं ही तो नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, और ऑफकोर्स कई टाइम गलती हमारी ही होती है, यस, यस। ऑफ द टाइम्स निकलती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड वी आर दी वंस हु हैव टू टेक डिसीजंस। अब टीम पार्ट पे हो कहीं पे भी हो, तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ये कहते हैं कि मैं इसी, आई एम 70, आई एम स्टिल लर्निंग। तो व्हाट इज द थिंग, मैं भी बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे इतने सारे बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रहा तुम अभी सारे बिजनेस करो, फोकस ऑन वन, कीप गोइंग। लोग कुछ भी बोल, और मैंने ये चीज देखी है हम यंग लोगों में, यही दिक्कत होती है। कोई हमें आके बोलेगा ना यार ये तेरा बिजनेस है, हम वो बड़ी जल्दी दिल पे ले लेते हैं, फिर हम सोचने लगते हैं यार क्यों मैं लाइफस्टाइल बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, व्हाई नॉट डू दिस। कूल चीज तो सैज है, आजकल मैं सैज करता हूँ, बट मार्केट को अडॉप्ट करो। बट ये नहीं है कि तुम कूद मार दो उसमें बिना सोचे समझे मैं क्या कर रहा हूँ। राइट, सो राइट। यस। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड। एंड इवन सुमित, एक चीज मैं आपको, आपसे अपनी ऑडियंस के लिए बात करवाना चाहूंगा, वो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। राइट। काफी फाउंडर मेरे पास आते हैं तो पहले दिन से वो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरा तो खैर पर्सनली है, बूटस्ट्रैप पहले कर लो जितना कर सकते हो, उसके बाद देखो तो। बट आप इस चीज में बेटर बता यस, पाएंगे यस। एज यू आर वर्किंग विद दिस सो इज मेनी दिस इज स्टार्टअप्स, दिस एंड आई इज आई वांट यू थिंक टू दिस टच इज डाउन ऑन दिस दिस इज टॉपिक। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर। तो अनमोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना बहुत मिथ है। यस। यू नो, फाउंडर्स को लगता है कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टर मिलेगा तो सक्सेस होगा। सबसे पहले फंडिंग लेना इन्वेस्टर से आपके सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, राइट? मल्टीपल स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको, कई स्टार्टअप्स होते हैं जिनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और उनको लेना भी चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे SaaS का प्रोडक्ट है आपका, तो इनिशियली यू विल हैव टू एक्वायर मोर एंड मोर कस्टमर्स और रिपीट में जब आएँगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे, 2-3 साल, 5 साल लगेंगे आपको। वो इन्वेस्टर को दिखता है। लेकिन अगर आप कोई D2C बेच रहे हो आज की डेट में, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो होगा कि भाई वो मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऐसा रखना पड़ेगा कि आप प्रॉफिटेबल बनो पहले, राइट? चाहे 10 लाख का माल बेच रहे हो, 5 लाख का माल बेच रहे हो, ऐसा नहीं वो 5 लाख का बेच रहे हो और 10 लाख मेटा को दे रहे हो आप, राइट? करेक्ट। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ये यू नो पुल प्रोडक्ट नहीं है, पुश प्रोडक्ट है कि भाई चिपकाया जा रहा है। तो ये भी सबको, तो नाउ डेज़ ये हुआ क्या है कि इन्वेस्टर्स आर वेरी मच अवेयर नाउ। 13-14 में जब स्टार्टअप इकोसिस्टम नया बिल्ड हो रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी, कई लोग फोमो में भी पैसे डाल रहे थे कि हम्म। भाई स्टार्टअप में घुसना है, घुसना है। अब क्या बड़े-बड़े स्टार्टअप्स फेल होने लग गए, तो इन्वेस्टर्स की भी लर्निंग हो गई, उनकी भी अवेयरनेस हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कोई भी स्टार्टअप आप कर रहे हो ना,
तो आपको पहले अपने पैसे लगा के उसको एक लेवल तक लाना पड़ेगा, और लेवल हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है, हर डोमेन के लिए डिफरेंट है। मैं वो भी थोड़ा-सा टच कर दूँ। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई आइडिया सोचूँ और कोई इन्वेस्टर पैसा मुझे दे दे, तो जिस चीज़ के लिए आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, जो सपना आपका है, तो वो इन्वेस्टर अपना पैसा क्यों खर्चा करेगा उसके ऊपर? सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मैं ना एक उस पे और डिटेल में जाने से पहले ना एक, चूँकि यंग फाउंडर्स भी होंगे, जो आइडिएशन स्टेज में होंगे, जो सुनेंगे हमको, कि एक जर्नी होती है स्टार्टअप्स की, और वो जर्नी में कोई भी चीज़ आगे-पीछे नहीं होगी, इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, और हर स्टेप पे कोई ना कोई एक मिस्टेक होती है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। तो करेक्ट। पहली चीज़ है आइडिएट, दूसरी चीज़ है क्रिएट, तीसरा है टेस्ट, फिर है मॉर्फ, फिर मॉडल, फिर स्केल, फिर हार्वेस्ट। अब यही सी से दुनिया चल रही है, राइट? अब मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। आइडिएट का मतलब है कि आज मैं और आप बैठे हैं, हम दोस्त हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है कि दिस इज़ समथिंग वी कैन डू। मोस्टली मोस्टली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप से रेगुलर कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, मेरी इरिटेशन भी होती है, पर मैं गुस्सा दिखा नहीं सकता, प्यार से ही बात करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आइडिया दिमाग में आया तो सोचने लगता है अब इन्वेस्टर पैसे देगा तो इस पे हम काम करेंगे। इन्वेस्टर नहीं देगा आपको पैसे इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर। कई बार ऐसी बातें करेक्ट। करता हूँ तो लोग पूछते हैं बट ये इसने तो ले लिया था आइडिएशन पे। वो फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है, उसके बैकग्राउंड में स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसने पहली कंपनी 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ में बेची है, एग्जिट लिया है, अब नया शुरू किया है। अश्लील ग्लोबल कुछ स्टार्ट करेगा तो तुरंत लोग चाहेंगे पैसे देना। कई लोग जो एग्जिट लेके स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। आप कॉलेज से पास आउट हो, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, देन यू विल हैव टू प्रूव एवरीथिंग टू द इन्वेस्टर एंड द मार्केट, तभी आपको कोई सपोर्ट करना चाहेगा। इवन मैं भी आपको सपोर्ट करना चाहूँगा अगर आपने कुछ किया हुआ है। आज आप पॉडकास्ट की बात करते हो, तो आप मुझसे पॉडकास्ट की आपने बात की, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत कम रहता है पॉडकास्ट में जाने का, क्योंकि वही जो बताया था कि करेक्ट। इनफॉर्मल बातें नहीं हो पाती हैं। हाँ। तो मैं पहला काम क्या करूँगा? मैं जाऊँगा आपके पॉड मैं जाऊँगा ही आपके पॉडकास्ट का जो चैनल है उसके ऊपर, यूट्यूब के, और देखूँगा, मुझे व्यू से मतलब नहीं है। मैं ये देखूँगा कि आपने कितना किया और किस तरह से बात कर रहे हो। तो करेक्ट। अगर ज़ीरो डे है, तो फिर वो दोस्ती यारी में आना अलग बात है, अगर हमारी जान-पहचान है तो। पर हमारी जान-पहचान नहीं है एंड इफ यू आर रीचिंग आउट टू मी और कोई पैरामीटर नहीं है मुझे देखने का आप कैसे क्या करते हो, तो आई विल बी स्पेक्टिकल भई मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पता नहीं क्या टाइम खराब होगा, 1 डेढ़ घंटे टाइम भी देंगे और वो मैसेज भी कन्वे नहीं होगा। पता नहीं कैसे बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो मेरे पास कोई ना करेक्ट। कोई पैरामीटर चाहिए जिससे मैं अनमोल को जान सकूँ। एंड देन आई विल बी मोर एक्साइटेड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड एवरीथिंग। तो पॉइंट ये है कि आइडिएट के टाइम में चुपचाप ये करना होता है कि अपने पैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, पेरेंट्स से, जैसे भी जो आपने ही बोला कि घर से लेके हमने लगाए, हुँ। वो लेके आपको दूसरे फेज में जाना होता है जिसको बोलते हैं क्रिएट। आप जो बड़ा काम करना चाह रहे हो ना, उसका एक एक्चुअल जो मेन फीचर्स हैं उसके साथ कुछ बनाओ, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी। हुँ। बीपी। अब इसमें गलती क्या हो जाती है कई फाउंडर से कि एमवीपी बनाने में इतना पैसा और समय लगा देते हैं कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो पता चलता है कस्टमर को ये चाहिए ही नहीं, या कोई चाहिए नहीं। नया ट्रेंड आ चुका होता है, या कोई कॉम्पिटिटर पिवट करके उसमें आ चुका होता है और मामला खराब हो जाता है और कमर टूट जाती है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने देखे हैं अपनी जर्नी में। यस। तो उस समय है कि क्विक, कम से कम पैसे लगा के एक्चुअल फीचर के साथ चीज तैयार करो जिससे पता चल जाए कि क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं। एंड तीसरा है टेस्ट। टेस्ट में जब आप जाते हो तो आपको कस्टमर से कुछ 200, 500, 1000 कस्टमर से फीडबैक लेना होता है कि क्या ये जो हमने सोचा था, कस्टमर भी वैसे ही इसको ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्या उसका करेक्ट। सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर उस टाइम में क्या गलती हो जाती है कि अनमोल लेके आए मेरे पास कोई प्रोडक्ट, अनमोल ने दिखाया। अब उसमें मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो अनमोल को बहुत मज़ा आ रहा है और जैसे ही उसमें कुछ कमियाँ निकाल रहा हूँ तो अनमोल को मुझे गालियाँ देने का मन कर रहा है और दुखी हो रहे हैं। नहीं, उस समय जो भी अच्छी बातें हैं, उस फीडबैक को तो आप लो। और जो चीज़ें लगता है कि कस्टमर ये चाहता है कि ये और रहे तो ठीक रहेगा, तो वो चीज़ को उसमें ऐड करने की कोशिश करो अगर हो सकता है। करेक्ट। और उसको बोलते हैं अगले फेज़ को मॉर्फिंग। मॉर्फिंग का मतलब होता है कि जो भी टेस्टिंग के टाइम आपको फीडबैक मिले हैं, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोडक्ट में, राइट? तो अब मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, केविन सिंड्रोम करके एक आदमी था। मैं सरनेम में कुछ ऊपर-नीचे कर रहा होऊँगा। तो उसने एक गेम करने का प्लेटफ़ॉर्म बनाया, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म सॉरी, गेमिंग ओके। प्लेटफ़ॉर्म बनाया, उसको वैसे ही टेस्टिंग में डाला 200-400 लोगों के बीच में। तो उसने देखा कि लोगों ने ना 90% फीचर उसके रिजेक्ट कर दिए, पसंद ही नहीं आया। लेकिन उसमें हुँ। ना एक फ़ोटो पोस्ट करने वाला जो ऑप्शन दिखता था ना, जिसमें आप खेल रहे हो तो आप भी पोस्ट कर सकते हो, मैं खेल रहा हूँ तो मैं भी पोस्ट कर सकता हूँ। वो चीज़ उसको लोगों को सही आई। अब मेरे जैसा कोई एवरेज आदमी होगा तो लगेगा कि मैं फेल हो गया। उस बंदे ने हुँ। क्या किया
कि सारे वो 90% चीज़ों को मॉर्फ कर दिया और जो चीज़ पसंद आई थी ना उसके फीचर्स और बढ़ा दिए और वो स्टार्टअप का नाम है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। तो आप समझो कि तो फीडबैक लेके आप कस्टमर के लिए बना रहे हो, आप अपने लिए नहीं बना रहे हो और कस्टमर पैसे दे के खरीद रहे हैं, आप चिपका नहीं रहे हो उसको, बाँट नहीं रहे हो, मतलब चैरिटी नहीं हो रही। तो कोई पैसे अपना पैसा क्यों देगा आपको जब उसको सॉल्यूशन मिल रहा होगा और सॉल्यूशन उसको कैसे मिलेगा ये वही बताएगा ना कि ये पेन है उसका। तो करेक्ट। मॉर्फिंग करना बहुत ज़रूरी है और जब कस्टमर के फीडबैक के साथ आप मॉर्फिंग कर देते हो, तब आपको मिलता है प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसको पीएमएफ बोलते हैं हम। अब ये प्रोडक्ट है जो लोग खरीदेंगे और उसके लिए पैसे देंगे, राइट? अब जब आपको पैसे दे रहे हैं लोग उसके लिए खरीद रहे हैं, तब बिज़नेस मॉडल बनता है कि भाई कितने में बेचना है, क्या मार्जिन रखना है। और आप देखोगे ना आज के डेट में बच्चे क्या करते हैं आइडिएशन स्टेज में ही बोलते हैं कि हम इतने का इतना खर्चा लगेगा। भाई तुझे कैसे पता इतना लगेगा? अभी तुझे पता भी नहीं है क्या-क्या फीचर के साथ आना है। तो इतने स्टेप के बाद तो मॉडल बनता है अनमोल बिज़नेस मॉडल। करेक्ट। और बिज़नेस मॉडल में अब क्या गलती होती है आपको बताता हूँ अनमोल। हर स्टेप में कोई ना कोई गलती है जिसकी वज़ह से फेल होते हैं स्टार्टअप। बिज़नेस मॉडल मेरा बन गया, अब समझ में आ गया। अब मैं जयपुर में कर रहा हूँ जयपुर के लोग तो मैं पहले जयपुर के में मार्केट अभी सेट हुआ नहीं है मेरा, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि अहमदाबाद भी करूँगा, सूरत भी करूँगा, मुंबई भी करूँगा, देहरादून भी करूँगा। तो ऐसे में स्केल नहीं होता है, इंसान रायते की तरह फैल जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अगर मार्केट फिट मिल गया है प्रोडक्ट, तो आप एक मार्केट को सर्टेन मार्केट को पहले सर्व करो, कि जब सर्व कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, कस्टमर की क्या-क्या क्वेरीज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो उससे बनता है आपका एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और जब आपका करेक्ट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाता है ना, यानी मैकडॉनल्ड का मैं देहरादून में आके बर्गर खाऊँ या मैं जयपुर में बर्गर खाऊँ, टेस्ट में चेंज नहीं आएगा। उसको करेक्ट। बोलते हैं वो स्टैंडर्ड एसओपी ऑपरेटिंग सेट। प्रोसीजर। अब बस उसको खाली आपको रेप्लिकेट करना है मल्टीपल जगहों पे। तो बिज़नेस मॉडल बना, अब आपने मार्केट देख लिया, अब होता है स्केल। अब आप मल्टीपल शहरों में जाते हो, रेप्लिकेट करते हो, सिस्टम आपको पता है कैसे चल रहा है। जैसे आज किसी भी शहर में ब्लिंकिट को आना है तो एक ही बोर्ड लगाना है कि ब्लिंकिट इज़ कमिंग टू योर सिटी, बात खत्म। करेक्ट। उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ब्लिंकिट तो मॉडल अपडेट है। एब्सोल्यूटली सेट है। ओला, उबर को किसी नए शहर में जाना है तो ओला इज़ इन द सिटी नाउ, बात खत्म। तो क्योंकि पता है कि लोगों को सर्विस क्या देनी है, लोगों को कैसे देना है, सब कुछ सेट है। तो वो एसओपी पहले बना ली उन्होंने। अब स्केल करने का जब टाइम आता है तब बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं आपके उसमें फंडिंग के जो डील्स होती हैं, किस वैल्यूएशन पे जाना है, किस परसेंटेज पे जाना है, तो एक अलग टॉपिक है तो उसपे थोड़ा टच करूँगा मैं। बट उस समय कई बार गलत डिसीज़न से काम खराब हो जाता है। और अगर अनमोल आपने आइडिएट, क्रिएट, मॉर्फ आइडिएट, क्रिएट, टेस्ट, मॉर्फ, मॉडल और स्केल तक में ये गलतियाँ नहीं की या गलतियाँ करके सीख-सीख के जल्दी सुधार कर लिया और सर्वाइव कर गए, तब समय आता है जब या तो आप आईपीओ में जाते हो या बड़े लेवल पे एक्वायर हो जाते हो और अब जो स्लीपलेस नाइट था, जब बहुत परेशानी से आपने बिज़नेस चलाया था, अब जो अनाज बोया उसको खाने का टाइम है, तो इसको बोलते हैं हार्वेस्ट। नाउ यू विल बी एबल टू एन्जॉय और बाकी लोगों को फंड करो, इन्वेस्ट करो, जो एन्जॉय करना है करो। सो मेरा पॉइंट है कि ये तो जर्नी है। तो सबसे पहले अब ये जर्नी आप गौर करोगे ना तो कोई जो स्टेप्स मैंने बताया ना कोई किसी के पहले नहीं आएगा, यही आएगा। और कोई भी करेक्ट। स्टार्टअप आप चलाओ ना फंडामेंटली सेम कि कस्टमर के लिए बनेगा, कस्टमर उसके लिए पे करेगा और हम पैसा कमाएँगे। दिस इज़ द थिंग चाहे किसी भी आप एडटेक हो, फिनटेक हो, कुछ भी हो। तो फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। अब ये प्रोसेस को पेशेंस के साथ करने की जिसकी कैपेसिटी है ना वो चला लेगा। बार-बार हुँ। गिर के उठ के क्योंकि प्रोसेस यही फॉलो होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये एटीट्यूड पे जो काम कर रहे होते हैं ना, तो पहली फंडिंग फाउंडर्स की क्लैरिटी पे और फाउंडर्स के एटीट्यूड पे, फाइनेंशियल रोड मैप की क्लैरिटी पे, बिज़नेस मॉडल की क्लैरिटी पे होता है। 50 के लाख 1 करोड़ जो फंड लोग रेज़ करते हैं, जो हम सीड फंड जो हम ऑब्वियसली हम कराते ही हैं अपने स्टार्टअप्स के, तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हुआ होता है। लेकिन ये क्लैरिटी कस्टमर के साथ उनका आ गई होती है। बिज़नेस सेट हो चुका होता है और अर्ली ट्रैक्शन में आ चुके होते हैं। यानी 5 लाख नहीं तो कम से कम 500 कस्टमर्स को बेचना शुरू कर चुके होते हैं और वैलिडेट हो चुका होता है प्रोडक्ट। तो पहली फंडिंग हमेशा फाउंडर्स की क्लैरिटी पे और प्रोडक्ट के वैलिडेशन पे और कितना वो स्केलेबल हो सकता है, कितना मार्केट साइज़ है, उस पे होता है। तो मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ कि पहली फंडिंग जो होती है वो फाउंडर की फेस वैल्यू पे होती है। लेकिन वो फेस वैल्यू जब बोलता हूँ तो लोगों को लगता है शक्ल की बात कर रहा हूँ। फेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी क्लैरिटी, उसका नॉलेज, उसकी करेक्ट। रिसर्च, उसको क्वेश्चन का आंसर देने की क्षमता जो इन्वेस्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेल रिसर्च जो फाउंडर्स है ना, उनको मिलता है। तो अगर आप कुछ सोच के फितूर दिमाग में आया है और आप सोचते हो कोई फंड दे तो मैं चलाऊँगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्ली ट्रैक्शन में आपको प्रोडक्ट को वैलिडेट करना ही पड़ेगा आज की डेट में, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर। तो दिस शुड शुड बी वेरी क्लियर। उसके बाद अगर आपने एक फंडिंग राउंड रेज़ कर लिया अपने फेस वैल्यू पे तो अगर वो पैसे 50 लाख आप ले रहे हो, 1 करोड़ आप ले रहे हो
और आपने कोई माइलस्टोन सेट किया है, इन्वेस्टर को बोला कि ये माइलस्टोन है, जिसको हम अचीव करेंगे इस 1 साल अगले 1 साल। अगर वो पैसे को आपने यूज़ भी कर दिया और ऐसे ही मल्टीपल फाउंडर्स हम देखते हैं, पैसे पूरे 1 करोड़ खत्म हो गए और गाड़ी वहीं की वहीं है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। तो अगले राउंड में अब क्वेश्चन फेस वैल्यू का क्लैरिटी का रहेगा ही नहीं। अगले राउंड में क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने कि लास्ट टाइम कितना रेज़ किया था आपने? तो 1 सीआर। उसके बाद क्या उस समय क्या था आपका स्टेटस और अब क्या है? और इफ यू डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दैट जर्नी, तो फिर अगले राउंड की जो फंडिंग होगी नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ये हम्म, समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर की ज़रूरत आपको नहीं है, इन्वेस्टर्स को भी उतना ही ज़रूरत आपकी है। और मैं फाउंडर्स को बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा काम खाली करोगे ना तो इन्वेस्टर्स ढूँढ लेंगे आप। करेक्ट। हमारे एक स्टार्टअप है ज़ोरावेयर करके, आप चेक करना ज़ोरावेयर। वो ठेठ देसी बंदा, देसी बिज़नेस करने वाले आदमी जो यूटेंसिल्स होते हैं अपने कढ़ाई वगैरह ये सब के, करेक्ट। उनको एक बार दिमाग में आया कि मुझे स्टार्टअप करना चाहिए अब, दुनिया बहुत आगे जा रही है। ही रीच्ड आउट टू अस, उन्होंने मिलते ही बोला कि सुमित जी आपके बारे में बहुत सुना है और ये सब है, तो मैं आई वांट टू जॉइन। उन्होंने इमीडिएटली जॉइन किया, मतलब कोई ज़्यादा बात अब मैं उनके साथ काम करना शुरू करूँ, तो उनको कुछ भी पता नहीं था, तो हम कोशिश पेशेंस के साथ कर रहे थे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि ये सीख लेंगे चीज़ों को बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। नवंबर में जयपुर में हमने एक इवेंट किया, उसमें वो आए, सारे फाउंडर्स हमारे इकट्ठे होते हैं, तो वो आए। उन्होंने सबको सुना बहुत ध्यान से, एक्सपीरियंस्ड आदमी है बहुत, सबको सुना बहुत ध्यान से और सुनने के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद निकले तो एयरपोर्ट से मुझे कॉल किया खत्म होने के बाद, "सुमित भाई, मैं अब आपकी बात समझ गया, मैं 5 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ की सोच रहा था, मुझे 500 करोड़ 1000 करोड़ का सोचना है और ये ऑनलाइन ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा।" आप बिलीव नहीं करोगे अनमोल, नवंबर में उस बंदे ने शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई। नवंबर 2023, ये 1 साल होने वाला है। नवंबर में वेबसाइट लाइव हुई। आज पर मंथ की सेल सिर्फ़ उनकी वेबसाइट से, मैं अमेज़न को छोड़ देता हूँ। सिर्फ़ उनकी वेबसाइट से 35 लाख से 40 लाख की है पर मंथ। वाह। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि 35-40 लाख, रोएस जो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड एड स्पेंड। 6x है। वाह। आप मैसिव। टेक्निकली समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और सारे खर्चे और खुद की सैलरी निकालने के बाद भी 10% का नेट मार्जिन है। यानी कि 3 साढ़े 3 लाख रुपए का प्योर प्रॉफिट होता है हर महीने। क्योंकि बंदे को धंधा करना आता था। उसको प्रोसेस हम्म, नहीं पता चल रहा था ये कैसे करना है। मैंने 4 स्टार्टअप को अपने मिलाए, अर्जुन वैद्य ने उसको पिक किया, वो देसी बंदा जो था। जो सीखता गया उसको इम्प्लीमेंट करता गया। मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप उसकी एक्सेल शीट देखोगे ना, प्रोडक्ट वाइज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉइंट में निकाला हुआ है। इतनी क्लैरिटी है। तो मैं वही बोलता हूँ कि हम तो ज्ञान दे देंगे, हम रिसोर्सेज़ दे देंगे, बट फाउंडर को इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं हाँ। खुद होता है अनमोल, मैं नहीं कर पाता। क्यों बोल रहा हूँ मैं नहीं कर पाता? क्योंकि उस धंधे, उस प्रोडक्ट का नॉलेज उस आदमी को पिछले 10-15 दिनों कि क्या कॉस्टिंग करेक्ट। होती है कढ़ाई की, किस तरह के होता है, क्या होता है, वो पहले से था। पैकेजिंग करके, ऑनलाइन मार्केटिंग करके क्या गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे बेचना है, वो नहीं पता था, वो ही हम सिखाते हैं। वो उसी माहौल में हम लेके आते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज तो आपको ही रहना पड़ेगा। हमारे ज्वेलरी के स्टार्टअप है यहाँ पे, सिल्वर ज्वेलरी ऑनलाइन बेचते हैं, औरी करके। वो बंदा 15 साल तक बी2बी में काम कर रहा था। डी2सी का बनाया। अभी 60 लाख, 40 लाख, 45 लाख पर मंथ का रेवेन्यू। ही इज़ एबल टू डू इट। क्योंकि उनको पता है उसका सप्लाई चेन कैसे होगा। नेसेसरीटीज पता है तो आप कर सकते हाँ, अगर मैं सोचूँ कि मैं किसी से ट्रेडिंग करके ले आऊँ और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूँ, तो मैं बड़ा स्टार्टअप नहीं कर नहीं हो पाऊँगा, वो सकता। लॉस में जाएगा। मैंने भी इनिशियली ये बहुत गलती की है, मैंने ऐसे फाउंडर्स के साथ मार्केटिंग पे काम किया, तो एक मैं केस स्टडी बताता हूँ। हुँ, तो उस ब्रांड को हमने, दे वर डूइंग 20-30,000 पर मंथ। राइट। तो उन्होंने हमें मीडिया बजट दिया 15,000 का कि इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हो, तो मार्केट में पोटेंशियल था। बट इनिशियली ये क्लैरिटी नहीं मिली कि दे वर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, हाँ, दे वर जस्ट मीडिएटर्स। तो ये क्लैरिटी थी नहीं। तो वी वर्कड हार्ड, वी टुक 6 मंथ्स। तो वो जो जहां वो 30-40 पर मंथ कर रहा था, मैक्स टू मैक्स 50 आज तक गया था शॉपिफाई के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। हमने उसे स्केल करके 2 लाख कर दिया एट द स्पेंड ऑफ 15,000 पर मंथ। तो पहले महीने वो 50 में 30 बढ़ा, फिर ऐसे करते करते मतलब बाय द एंड ऑफ 6 मंथ वो इतना पहुंच गया आगे। अब बिजनेस तो इतना स्केल कर दिया, बट दे नेवर टोल्ड अस कि हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। क्लैरिटी उन्हें कुछ थी नहीं, बिजनेस चल रहा था हवा, अब कब कब तक हवा में चलेगा। अब मैन्युफैक्चरर जो था एक्चुअल में, उसने देख लिया कि व्हाट दे वर एग्जैक्टली डूइंग।
कि यार ये तो मेरे से सामान मंगाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है इतना ज्यादा। उसको पता चल गया इनके मॉडल के बारे में, सो दे शट डाउन देयर सप्लाई, बिजनेस हो गया वहीं खत्म। आज तक आई एम स्टिल इन टच विद देम। तो मुझे ये कहते हैं मेरे मैन्युफैक्चरर मुझे सामान नहीं दे रहा, और कोई और मैन्युफैक्चरर है नहीं इस चीज में जो रिलायबल हो इंडिया में। ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। अनमोल, यहाँ पे एक हमारे नोन इन्वेस्टर भी हैं, सब कुछ है। उन्होंने टू व्हीलर जो होते हैं ना स्कूटी, ईवी वाले, उसका हाँ उन्होंने हाँ मैन्युफैक्चरिंग क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा के अपनी ब्रांडिंग की। तो चलाने वाले उनके पार्टनर तो बहुत ही अग्रेसिव आदमी। आप देखो कि उन्होंने 6 महीने में पूरे इंडिया में कितने वो जो एजेंसी जो होती है वो चालू कर दी थी, लोगों को दे दी थी, जहाँ से वो मेरठ में करवाते थे ना मैन्युफैक्चरिंग। वो बंदे ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही जा रही है, हाँ और ये गलती क्या करते थे ना कि वहाँ मैन्युफैक्चरर से सीधा एजेंसी को भेजते थे। यानी कि वो सीधा एजेंसी वाला बंदा, जो मैन्युफैक्चरर है, एजेंसी वाले बंदे से ही कनेक्टेड है, मतलब भेज रहे हैं हमको, और ये अपने ब्रांड नेम पे करते हैं। उस बंदे ने अपने ब्रांड नेम से एक ही दिन दूसरा प्रोडक्ट उतार दिया मार्केट में, और थोड़ा-सा वो करके चेंजेस करके उसमें, उसको पूरे प्रोडक्ट को चेंजेस क्या, थोड़ा-सा माइनर प्राइस में ऊपर-नीचे करके उन्हीं एजेंसी वालों को अप्रोच कर लिया उसने। और एक बार में मार्केट खत्म कर दिया, मतलब बिज़नेस खत्म, खत्म हो गया। एक बार। तो ये चीज़ें होती है। तो अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब आप बी2सी ब्रांड बनाते हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। इम्पोर्टेंट ये हाँ है कि वो रेसिपी आपकी हो। हाँ राइट। रेसिपी जैसे आपकी हो। हमारे मल्टीपल स्टार्टअप है, जैसे फ्रेश फूड करके हमारा स्टार्टअप है, जो डॉग्स फूड बनाते हैं वो। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं कहीं से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खुद का करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा। करवाते हैं, हाँ लेकिन वो तो है। फॉर्मूला इनका है कि कैसे-कैसे क्या उसमें होगा, कैसे होगा। तो उसको कॉपी कर लेना एकदम से मुश्किल है। और ऐसा होता है कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन है या कोई ऐसी चीज़ है, जो जेनेरिक चीज़ें हैं, वो कहीं से लाके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो कभी भी खत्म होने के चांसेज़ हैं उसके। और उसमें भी कई लोग धंधा बनाते हैं, वो धंधा करने वाले को धंधा आना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि आप उस प्रोडक्ट के साथ खेले हुए हो ना अगर, उसमें पहले काम किया आपने रिगरसली, चाहे वो उस फैक्ट्री में आपने काम किया उस बंदे, तो उसकी निटी-ग्रिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ना कॉस्टिंग निकाल पाओ। आज मान लो कि करेक्ट। हम बोले कि ऑनलाइन कुर्तियाँ बेचना है, ऑनलाइन टी-शर्ट बेचना है, तो सुनने में कितना आसान है। लेकिन मैं टी-शर्ट हाँ बेचने जाऊँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मैं कॉस्टिंग ही हाई कर दूँगा इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं कहीं से लेके आऊँगा। और जो लोग इस धंधे में हैं, उनको बटन और धागे तक की कॉस्टिंग पता है। एग्जैक्टली exactly। और वहीं पे अब इनके साथ प्रॉब्लम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सेम यही थी। दे डिडंट न्यू उसमें जाता क्या प्रोडक्ट को पूरा बनाने में। इट वाज 2500 रुपए का मैट, योगा मैट 2500 रुपए का, आप और मैं 600 का लेके आएंगे। मैं 2500 का मैट बेच रहा था। इट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, नो डाउट। हमें ऑडियंस भी मिल गई थी, सब मिल चुका था। बट द थिंग वाज दैट जब मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई बंद की, दे डिडंट न्यू वो बनता कैसे है। और जहाँ पे भी हो गए, दे यही डिड गलती नेवर गॉट द है। सेम यस, प्रोजेक्ट। दिस वाज़ द ये प्रॉब्लम। सबसे बड़ी मिस्टेक। सबसे बड़ी मिस्टेक। तो आई थिंक, अभी सो मेरा ये कहना है कि अगर फंडिंग चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू, सो इनिशियल इन्वेस्टर भी, अगेन वही बात मैं बोल रहा हूँ, कि पहला इन्वेस्टर अपने कस्टमर्स को बनाओ। इफ दे आर पेइंग यू मनी, यू विल हैव दैट फंड टू रन द बिज़नेस। एंड जब दिखेगा हमें, इन्वेस्टर्स को, कि कस्टमर्स हमको पैसे खुल के दे रहे हैं, तो वो भी खुल के पैसे देगा। अगर आप इन्वेस्टर के सामने गिड़गिड़ाओगे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कई फाउंडर्स आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बड़ा ही रूथलेस बात बोल रहा हूँ मैं। जो सोशल इम्पैक्ट वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनको छोड़ देता हूँ। जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि धरती पे आप कितनी दुनिया बदल रहे हो। इम्पोर्टेंट ये है कि धंधा कितना कर रहे हो आज की डेट में। कई फाउंडर्स आते हैं डीटीसी में, बताते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है आपने, ये ऑर्गेनिक है, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर वो है जो इसी तरह का प्रोडक्ट बेचता है, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है, पेस्टिसाइड यूज़ करता है, 50 बातें करते हैं। इन्वेस्टर पूछा, अच्छा आप कितनी सेल कर रहे हो अभी? बोलते 2 लाख पर मंथ। और वो कितनी कर रहा है? 20 लाख पर मंथ। तो फिर तारीफ मत करो अपने प्रोडक्ट की। पहले ज़माने में चलता था अनमोल, इन्वेस्टर के सामने आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग 13, 14, 15 में, और आप विज़न दिखाते तो इन्वेस्टर पैसे देते। अब है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग तो है ही, बट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। नंबर्स। अगर नंबर्स नहीं है, और नंबर्स हैं, तो आपको ज़्यादा कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नंबर इटसेल्फ विल स्पीक बिफोर द इन्वेस्टर्स। एग्जैक्टली अब तो थिंग्स हैव गॉन सो ट्रांसपेरेंट। मैं भी जैसे एक स्टार्टअप के साथ काम करता हूँ, तो वो मेरे को आके बोल रहा है कि आप मेरे को इतने पैसे दे दो, मेरे को ये जरूरत है, मेरा सर्वर चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा अभी तो आइडिएशन में मैं, मेरे को आपको पता ही नहीं कि आप। मैंने कहा मैंने जो गाइडेंस दी है, वी हैव बीन टच, तो जो आपने बात बोली मैं उससे टोटली रिलेट कर पा रहा हूँ। नंबर सही है तो बात आगे हो पाएगी, नहीं है तो आपने इसका मतलब किया ही नहीं। आप आई कैन क्राई अबाउट कि भाई मैंने 4 साल में 1 लाख चीजें कर दी।
मैं तो और जो चल रहा है वही तो दिखाऊंगा मैं कि भाई मैं यही यही तो मेरा कर रहा हूँ मैं। मैं आई आइडिशन कैन स्टेज नॉट। पे आइडिशन स्टेज पे मैं अपने प्रोग्राम में भी एनरोल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आइडिशन स्टेज पे अगर मेरी बात या किसी मेंटर की बात फाउंडर सुनेगा ना, तो इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और करेक्ट। वो अगर कस्टमर की बात सुनेगा ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ लेके आएगा जिससे हम इन्फ्लुएंस होंगे और काम करेंगे उसके साथ, नंबर 1। और करेक्ट। नंबर 2 ये समझना चाहिए कि अर्ली स्टेज जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है आपकी जर्नी। और कल ही परसों मैं अहमदाबाद में किसी पार्टनर के साथ बैठा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप कोई चीज़ इनिशिएट कर रहे होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा पावर होता है आपके पास। क्योंकि उस समय आप सोच सकते हो और चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक बार मॉडल की शुरुआत हो गई ना, तो फिर नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता समझना पड़ेगा कि आइडिएशन वाला टाइम और इनिशियल टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। है। यही है जो अनमोल, यही है कि इन्वेस्टमेंट फंडिंग के अब उसमें बस क्विकली एक चीज़ बस ऐड कर देता हूँ कि कई लोगों को फाउंडर्स को कई बार लगता है कि भई इन्वेस्टमेंट फंडिंग हो रही है, तो एक इक्विटी फंडिंग होती है जिसमें एक वैल्यूएशन होता है, जिस पे इन्वेस्टर पैसा देता है और आप उसके बदले में इक्विटी देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, अर्ली स्टेज में होता है, किसी इन्वेस्टर को पसंद आता है, लेकिन उस समय आपका वैल्यूएशन ही कुछ नापा नहीं जा सकता कि 1 करोड़ हुआ कि 1.5 करोड़ हुआ कि उस तरह का नंबर नहीं है। और वैसे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और 50 लाख रुपए आपको देना चाहता है, तो पूरी कंपनी थोड़ी बेच दोगे उसको। तो ऐसे केसेस में सीसीपीएस, सीसीडी ऐसे मॉडल होते हैं, तो फाउंडर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कैसे काम करता है ये। इसको बोलते हैं कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। उसका मतलब ये होता है कि आज अनमोल एक अच्छा आइडिया लेके आए हैं, अनमोल फाउंडर ज़बरदस्त है, मुझे पता है ये गेम खेल देंगे, तो मैं 50 लाख रुपए उनको देना चाहता हूँ। अब अनमोल ने अगर उस समय वैल्यूएशन निकाला था, तो 50% कंपनी मेरी हो जाएगी। तो उस समय अनमोल मेरे से ये डील करते हैं कि आप अभी पैसे दो मुझे और हम आपको या तो कैप होता है या डिस्काउंट होता है। तो कैप का मतलब ये हुँ। है कि जब हम अगला राउंड करेंगे, तो आपके लिए 5 सीआर का कैप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 करोड़ पे फंड रेज़ कर रहा हूँगा ना, तो आपका जो ये पैसा है वो कन्वर्ट होगा 5 करोड़ पे, पहला जब राउंड होगा। और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी मेथड हम ले सकते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी अ, वैल्यूएशन पे मैं रेज़ कर रहा हूँगा अपना अगला राउंड, अगर पहले साल में मैंने राउंड क्लोज़ किया, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरे साल में किया तो 30% मिलेगा और तीसरे साल में किया तो 40% मिलेगा। इसका गेम का मतलब ये होता है कि चूँकि वो बंदा पहले रिस्क ले रहा है आपके ऊपर, तो अगर 10 करोड़ में कोई आ रहा है इन्वेस्टर, तो वो उसका जो अमाउंट है वो 8 करोड़ पे उसको 2 करोड़ के वैल्यूएशन का डिस्काउंट मिलेगा 20% का, क्योंकि उसने पहले आपको पैसे दिए थे। तो वो भी खुश है, क्योंकि उसने पहले पैसे दिए तो बाकी लोगों की जगह उसको ये मिल रहा है और आपकी भी कंपनी का इक्विटी वैसे नहीं गया, क्योंकि वैसे अगर दे दिया आपने 40-50 में तो वैसे ही कंपनी डूब जाएगी। तो मिला-जुला के करेक्ट। यही है कि ये कई मेथड्स हैं। तो जब भी कहीं ऐसा मौका है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, सेफ नोट है अगर आप देखेंगे तो। तो ये सब चीज़ें हैं जो बनाई गई है और कई बार ऐसा होता है कि मैं आता हूँ आपके सामने इन्वेस्टर बन के अनमोल कोई अच्छा प्रोडक्ट ले रहा है, तो अनमोल को बोलता हूँ कि अनमोल देखो मैं रिस्क ले सकता हूँ आपके साथ बट आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मैं क्या करूँगा मैं दूँगा कि इनको 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और मैं बोलूँगा ये डिस्काउंट कैप वाला जो है वो तो है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर अनमोल को पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। अब उस केस में अगर आप एज़ अ फाउंडर कॉन्फिडेंट हो कि यू विल बी एबल टू मेक इट, तो वो सबसे आसानी से होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कम से कम मेरा ये जो अमाउंट है, ये नहीं डूबेगा। तो मिला-जुला के ऐसी ही चीज़ें चलती हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली इक्विटी। और जितने भी यंग फाउंडर्स हैं, जैसे ही आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए ज़रूर आप ट्राई करें। गवर्नमेंट दे रही है पैसे, आपको एमवीपी बनाने के लिए पैसे दे रही है, कमर्शियलाइज़ेशन के लिए पैसे दे रही है। तो सबसे पहले ना किसी इन्वेस्टर के साथ भागने के पहले अगर आइडिएशन स्टेज में पैसा चाहते हो, तो अगर अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा मार्केट है, तो इनिशियल डेज में 5 लाख से 15 लाख रुपए, अप टू 25 लाख होता है, लेकिन 5 लाख से 15 लाख रुपए आपका स्टेज देख के देती ही देती है सरकार। और ये मल्टीपल जो एआईसी हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और यूनिवर्सिटीज़ के जो सेक्शन 8 कंपनी जो इंक्यूबेटर्स हैं, उन सबके पास वो आपके शहर में भी जिस शहर में आप हो वहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पास वो सीड फंड है। आप पता करें कि सीड फंड आया है, आप अप्लाई करें सीड फंड के लिए और आपका शॉर्टलिस्ट होगा, उनकी कमिटी है, उनके सामने आप पिच करोगे, वो आपसे सवाल-जवाब करेंगे। तरीका वही होगा, लेकिन वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं पैसे मिलने के क्योंकि स्पेशली आइडिएशन के लिए, कमर्शियलाइज़ेशन के लिए, Creation है। एमवीपी बनाने के लिए ही है। तो देखो वो सरकार सपोर्ट कर रही है आपको, राइट? हम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने जेब के पैसे लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क रिस्क तो है ही जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन अपने हिसाब से हम मैक्सिमम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि रिस्क कितना मिनिमाइज़ कर दें और उसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कि आपका पास्ट ट्रैक्शन क्या है, कंसिस्टेंट ग्रोथ क्या है और क्या फ्यूचर का विज़न है। तो इसके लिए आप जब तक ग्राउंड पे नहीं आओगे वो हमको पता नहीं चलेगा। तो आइडिएशन करेक्ट। स्टेज पे इन्वेस्टर के सामने बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रांट वगैरह के लिए ट्राई करें
या अपने बूटस्ट्रैप मनी से। और अगर आप बूटस्ट्रैप कर सकते हैं अपने, अगर बिना, जैसे ज़ीरोधा अगर आप लोगों ने नाम सुना है, ये तो ज़ीरोधा, ज़ोहो। ज़ोहो, ज़ीरोधा, ये इतनी बड़ी कंपनियाँ, ये बूटस्ट्रैप है, 100% कंपनी बिलॉन्ग्स टू फाउंडर्स। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ। सपोर्ट लेना चाहिए, करना चाहिए, आप बड़ा करो, आप भी कमाओ, आप अगर आप हमको एज़ ए इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व करते हो, तो आप हमें भी कमाई करने का मौका दे रहे हो, अगर अच्छा काम कर रहे हो। सो दैट इज़ फाइन। बट इन्वेस्टमेंट माँगना, कोई इन्वेस्टर आपको ऑबलाइज़ नहीं करेगा, ये समझना। कर जब तक वो कन्विंस नहीं है, दे विल डू पार्टनरशिप विद यू। अगर 2% 1% में मैं आपकी कंपनी में ले रहा हूँ ना, तो मैं उतनी कंपनी का ओनर बन के आ रहा हूँ, पार्टनर हुआ। तो उसके लिए मैं तब तक पार्टनर नहीं बनूँगा जब तक दम नहीं लगेगा मुझे। तो इन्वेस्टर्स आपको पैसे देके आपको ऑबलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यू आर गिविंग देम अपॉर्च्युनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी जर्नी ऑफ योर्स। मैं अपने सारे फाउंडर्स को जब मिलता हूँ, तो बोलता हूँ, जब वो बोलते हैं कि सुमित ने सपोर्ट किया, स्टार्टअप ने सपोर्ट किया, तो मैं बोलता हूँ, नहीं, आई एम थैंकफुल दैट यू पीपल मेड मी पार्ट ऑफ द जर्नी। क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बनाई होती, तो इतने अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स के साथ हम जुड़े नहीं होते और सारी चीज़ें नहीं होती। तो दे आर ऑबलाइजिंग मी। तो इन्वेस्टर्स को आप ऑबलाइज कर रहे हो, या कह सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो फॉर दैट मैटर, कि आप पैसा बना सकते हो, गेम खेल सकते हो। तो ये चीज़ें, ये अप्रोच लाना पड़ेगा फाउंडर्स को अनमोल, क्योंकि ना फाउंडर्स ऐसे भागते हैं इन्वेस्टर के पीछे ना, कहीं इवेंट-विवेंट में देखता हूँ, इतना दुःख होता है मुझे। पीछे-पीछे कि फ़ोटो, एक सेल्फी खींच ले, फ़ोटो खींच ले, उसके बाद उनसे सर ऐसा है, वहीं पिच करने लग जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ करेक्ट। कि एक तो क्या है ना, नेटवर्किंग करना नहीं आता लोगों को। इवेंट में हाँ, जाते हैं ना, तो वेंडिंग मशीन कार्ड का बन जाते हैं, वो सोचते हैं ये नेटवर्किंग है। नहीं, आप किसी इवेंट में जाते हो तो सब देखो कौन-कौन लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वहाँ सिर्फ 4-5 लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना है, उनसे हाय हेलो करना है, और इवेंट के बाद उनके साथ चाय-कॉफ़ी आप पी पा रहे हो ना, और एक मीटिंग कर पा रहे हो, तो नेटवर्किंग पूरी हुई। अदरवाइज़ वो अपने घर, आप अपने घर, और डस्टबिन में ही जाएगा आपका विज़िटिंग कार्ड, ये और बता दूँ मैं। तो इसीलिए सही लोगों से कनेक्ट करके वहाँ सिर्फ जिस्ट दे दो, टीज़र दे दो आप। उसके बाद अगर वो समझ में आ गया उसको, तो वो आपको लंच पे, डिनर पे बुलाएगा, और लंबी बातें होंगी। और टीज़र भी देना, तो 1 लाइन 2 लाइन में देना है, उसको लंबी कहानी नहीं है, उसका समय नहीं है, और 10 लोग और इंतज़ार कर रहे हैं उसका। तो 1 मिनट में, 30 सेकंड्स में अगर आप अपने स्टार्टअप का आइडिया कन्वे नहीं कर पा रहे सामने वालों को, तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए मेक श्योर, मैं अपने फाउंडर्स को अनमोल हर वीक में पिचिंग करवाता हूँ इन्वेस्टर के सामने, 1 मिनट का ही टाइम देता हूँ। बाकी इन्वेस्टर आपसे पूछ-पूछ के निकलवा लेगा, लेकिन आपको 1 मिनट में सारी बात बता देनी है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी है, फिंगर टिप्स पे चीज़ें हैं, तभी आप 1 मिनट में बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। नहीं तो नहीं बता पाओगे, ये करेक्ट। तो ये चीज़। अभी हमने भी एक रिसेंटली इवेंट में गए थे देहरादून में, सो वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था फाउंडर्स के लिए। तो दे टीम्ड अप अस विद अनदर फाउंडर। मुझे उसका बिजनेस पिच करना था विद इन 30 सेकंड, और उसको मेरा। नाइस, तो इट वाज टोटली क्रेजी। अमेज़िंग। 30 सेकंड एंड यू हैव टू पिच देयर बिजनेस, जो आपको पता भी नहीं। और टीम भी ऐसी बनाई थी, मैं सर्विस का हूँ तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो टोटली मुझे पता ही, नॉन रिलेटेड। दिस इज़ सो इट वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी। वहां पे इवन आई रियलाइज्ड कि मैं पिच में कितना अच्छा हो सकता हूँ, अभी कहाँ कहाँ कमियां थी मेरी। सो 30 सेकेंड्स, मैं तो फोन पे लिख के गया, बट आप स्टेज पे खड़े हो, देयर आर 100 मोर फाउंडर्स सीटिंग, आप फोन कभी देखोगे, 30 सेकेंड है। तो इनोवेटिव स्टोरीज बड़े तरीके निकाले। तो जैसे उस बंदे ने जो सामने माइक लेने आया, तो उसने उसको बोल दिया, सो जैसे ये बंदा माइक लेने आ रहा है, सो काइंड ऑफ इट इज एन ऑब्स्टिकल, सो वी हेल्प यू इन क्रॉसिंग दिस ऑब्स्टिकल। तो ऐसे करके उसने मार्केटिंग पिच कर दी। मैंने उसका इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस था, तो मैंने घर का एग्जांपल दे दिया कि घर वाले बोलते हैं यार ये फर्नीचर पुराना गया, फेंक दो, ये करके। तो ऐसे ऐसे मतलब बड़ा इनोवेटिव दिस हो गया वाज़ था। सो अमेज़िंग, मतलब मुझे भी आइडिया मिल गया। करेक्ट। दिस वाज़ तो अमेज़िंग। मैं भी वही मतलब मैं वहां पे गया था, इट वाज अ जेनेरिक स्टार्टअप। मैंने कहा यार देहरादून में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, चल के देखते हैं। बट जब ये एक्टिविटी हो, तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज समथिंग, एंड एवरीवन वाज एक्साइटेड टू लिसन। क्योंकि 30 सेकंड है, आप देख रहे हो कैसे विज कर रहा है सामने वाला, यू आर ऑल्सो लर्निंग, दे आर ऑल्सो लर्निंग। और 100 लोग थे इवेंट में, तो मुझे वो 2 घंटे के सेशन के बाद पता था मुझे किन 10 लोगों से मिलना है। राइट। तो जो नेटवर्किंग वाला पार्ट था, वो आधा सॉर्ट हो गया था भाई। मुझे पता था कि हाँ, ये मेरी इंडस्ट्री का सिमिलर, सो आई कैन कोलैबोरेट विद देम, लेट्स टॉक टू देम, दे आर बेस्ड आउट ऑफ ऋषिकेश। अच्छा, ये कर रहा है, मे बी आई कैन हेल्प देम, लेट मी गो एंड आस्क देम। तो मुझे वो 10 लोग पता थे, मैंने उनसे बात की, माय इवेंट वाज सॉर्टेड, देन आई वाज जस्ट चिलिंग। अमेज़िंग। ये चीज ग्रेट, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंट। अनमोल। सो आई थिंक अनमोल, मैं आते हुए अभी जो आपको बताया था कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो मेरी वाइफ को कहीं दिवाली की शॉपिंग करनी, तो वहाँ छोड़ के आया था। मैंने बोला 1 डेढ़ घंटे चले गए, देन खत्म करके आऊँगा। सो अब करेक्ट, वी कैन करेक्ट। कंक्लूड, अब आप जैसे ही करना Yes, चाहते yes, no, no, we have covered it all. Maybe even I was coming to conclusion. So, for first of all, for the audience, ये हमारा सबसे लंबा एपिसोड है। हो। तो those who have watched it here, I I am really blessed to have you guys as my audience, because I know आपने अपना 1 घंटा 40 मिनट दिया, हमने भी जो अपना 1 घंटा 40 मिनट दिया, it should be valuable for both of us. So first of all, thank you so much our audience for watching this Yes. episode.
Secondly, Sumit, thank you so much for coming here and giving your 1 hour 41 minute. Even in this festive season, यस, नहीं, this नहीं, episode हम अनमोल, दिवाली से अगेन पहले वही शूट मैंने कर रहे बोला हैं वही मैंने और बोला चलो वैसे तो बहुत बड़े-बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आएँगे, बट जो मैंने टाइम दिया, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं इसमें बहुत ही ध्यान रखता हूँ क्योंकि सिर्फ बयानबाज़ी करना मुझे ठीक नहीं लगता, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने 1 आवर 40 मिनट दिया है, ये मैंने दिया नहीं है, यू हैव अर्न्ड इट एंड आई वाज़ इक्वली एक्साइटेड। सो मैं यही ऑडियंस को जो बोल रहा था कि भई, अभी जो मैं आया हूँ ना, हाँ, मैं कोई अनमोल पे को ऑब्लाइज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ आके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड थैंकफुल हूँ कि अनमोल ने मुझे इनवाइट किया और जिस तरीके से ये बात करते हैं, जिस तरह से डिस्कशन करते हैं, जिस तरह से इनकी भी जर्नी है। तो मेरा कहना है कि कोई भी चीज़ माँगने से नहीं मिलती, यू हैव टू अर्न इट, राइट? सो अपना काम आप करते रहें, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अनमोल फॉर योर ऑल एंडेवर्स और खास तौर पे ये पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बड़े-बड़े लोग हमें आने वाले वीक्स में देखने को मिलेंगे यहाँ पे एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई इफ आई कुड कंट्रीब्यूट in any ways I am there and of course we are associated now so we'll do so many things together, so thank you yes, so much my living that goes dear unsaid. Anmol, thank you so much. Thank you so much, audience, for watching this. Do like, subscribe, share this episode as much as possible. And if you have any doubts, let us know in the comment section or in the feedback form. आप उसमें बताइए अपने सवाल. I will reach out to Sumit and get you those answers. Perfect. All right Thank Anmol, looking forward to see you soon Anmol in Dehradun. Thank you you. so much. Yes, yes.